वेलकम बैक एवरीवन अनारपी अकेडमी। आई होप आपको फर्स्ट लेक्चर हमारा पसंद आया होगा। इट वाज इन 3 पार्ट्स अबाउट बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड उसके एंड में कुछ क्वेश्चंस थे, सो वी विल बी कवरिंग इट सेपरेटली so that when we are making like one short video, you find two things differently, like where the questions are and where the notes are. So today we are going to start about the basics of agronomy. That is our second lecture that we are going to start. Okay, so agronomy, like अगर हम एग्रोनॉमी के बारे में समझ के देखें तो व्हाट इज दैट? इट लुक्स लाइक अ वेरी बिग वर्ड, बट इन शॉर्ट वी कैन सी इट एज अ farm management science. Okay, so that is in a more easier way how we are going to see this. Now, so what we are going to study in this is the definition of the agronomy, scope of agronomy, relation of agronomy with other sciences, role of agronomist, dryland dryland agriculture, tillage. This much we are going to see. The previous year questions and descriptive will be covered in another session. So now we start with the agronomy. So like what is agronomy? It's a farm management science. We can see in layman term agro, and if we dissect the word agronomy, it comes agro, which means field, and nomy, in which we can say that management. Nomus means management. So from there agronomy word is made. So basically, agronomy is a science of managing field crop. That is like we can say example as wheat, rice, cotton, sugarcane, and the soil in which they grow. So we are seeing the crop and the soil both thing. What is its main goal? The main goal will be focusing on productivity and the sustainability. So now we'll read it out. Agronomy is a branch of agriculture science that focuses on the study and management of field crop and soil to enhance the agriculture productivity and the sustainability. Like what I've said before, it encompasses various aspects of crop production, including soil management, crop rotation, crop physiology, pest management, and the application of technology to improve the farming practices. तो इसका काम क्या है? सॉइल का मैनेजमेंट भी देखना, क्रॉप का रोटेशन, लाइक हाउ द क्रॉप आर बीइंग रोटेटेड within the seasons or within the different seasons, crop physiology, how the crop is looking like, pest management, different आपके pests या कीड़े जो भी आप कह सकते हैं वो आते हैं, they are being destructive towards a crop जो गलत है, and application of the technology, like how we are improvising the technology in our farming practices so that we are getting better yield out of it. Agronomists work toward optimizing crop yield, improving soil health, ensuring the efficient use of resources while minimizing the environmental impact को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है. So this is what the work of agronomist is. Now the key component of agronomy. So like key component अगर हम देखें सबसे पहले soil science को. So what is soil science? Soil science is basically like understanding the soil, कि हमारी soil कैसी है, what are its nutrient and what crop can be grow on that. Different factors होते हैं. Like अगर आप देखेंगे एक एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू इंडिया अगर हम देखें तो एक फार्मर जो होता है इंडो गैंगेटिक प्लेन में, उसके लिए राइस प्लांट जो होता है उसके लिए येलो एंड शंटेड होना चाहिए राइस प्लांट के लिए. तो अगर सॉइल का आप सैंपल लेंगे तो जिसमें बहुत कम जिंक होगा तो उसमें आपको बताया जाएगा कि आपको जिंक सल्फेट मिलाना होगा सो दैट आपका क्रॉप रिकवर करे. अगर आपके राइस प्लांट
येलो और शंटेड ग्रोथ दिखा रहे हैं तो इसलिए। सो दैट इज व्हाट सॉइल साइंस इज। Underlying soil property, composition and the fertility is crucial in agronomy. सॉइल की प्रॉपर्टी को जानना, उसकी कॉम्पोजिशन, उसमें क्या चीज़ें हैं, एंड हाउ फर्टाइल द क्रॉप इज a crucial part of agronomy. Soil scientists analyze soil samples to determine nutrition level, pH, and other factors that influence the plant growth. How is seeing the nutrition level, the pH, and other factors. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, अगर राइस प्लांट के ऊपर येलो एंड शंटेड आपको विजिबिलिटी हो रही है, आपको निशान दिख रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि आपके पास जिंक की कमी है उस सॉइल के अंदर, एंड यू आर एडिंग जिंक सल्फेट टू इट सो दैट द क्रॉप कैन रिकवर. The recommended appropriate fertilizers and the amendments to optimize soil condition. तो ये है एक एग्जाम्पल के साथ हाउ वी आर एक्सप्लेनिंग द सॉइल साइंस. नाउ क्रॉप फिजियोलॉजी. सो just a moment. Yeah, crop physiology is the study of plant itself. हम प्लांट की फिजिकल कंडीशन को देखते हैं. लाइक कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने उस पे एक येलो शर्टेड आपका बिहेवियर देखा या उस पे पैचेस देखे या कलर देखा, तो हमें पता चल गया कि क्या चीज़ की कमी है. एंड इससे हमें पता चलता है क्रॉप फिजियोलॉजी से कि कैसे हम प्लांट को स्ट्रॉन्ग ग्रो करें, हमारा सीड कैसा होना चाहिए, एंड क्या चीज़ हमें डालनी चाहिए ताकि एक बेटर क्रॉप की ग्रोथ हो. एग्रोनॉमिक स्टडी द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस of plants to identify factors affecting growth, development and yield. Growth, development and yield को ये फोकस करता है. This knowledge helps in developing crop management practices and to maximize the productivity. आप जितने भी इसके की कंपोनेंट्स देखेंगे, एट द एंड आपको ये पता चलेगा कि हाउ वी आर मैक्सिमाइजिंग द प्रोडक्टिविटी. लाइक जैसे अगर हम देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल, आपने मेज कॉर्न देखे होंगे, उनको रोलिंग अप करा जाता है, लाइक वो रोल होना शुरू हो जाते हैं. तो एग्रोनॉमी, जो एग्रोनॉमिस्ट होता है वो आपको बताता है कि ये कोई डिसीज नहीं है, ये प्लांट की फिजियोलॉजी है. अगर प्लांट अगर उसे रोल कर रहा है अपने आप को, अपने लीव्स को, तो इसलिए करता है क्योंकि उसे वाटर अपने अंदर टेंशन करना है. लाइक अगर क्रॉप की जो आपकी लीव्स हैं वो रोल आउट होना शुरू होती है अंदर की तरफ, तो दैट मीन्स कि उसके पास पानी की कमी है. आपको इरिगेशन का टाइम आ चुका है, आपको उसमें पानी डालना पड़ेगा, वरना ये क्रॉप की जो आपके लीव्स हैं वो अंदर की तरफ फोल्ड होती जाएंगी. अंदर फोल्ड क्यों हो रही, क्योंकि वो पानी बचा रही है अपने अंदर. सो दिस इज व्हाट क्रॉप फिजियोलॉजी इज अबाउट. डिफरेंट उसके काइंड ऑफ, आप इसको इन शॉर्ट समझ सकते हैं कि उसके एक व्हाट वी कॉल इज, उसके जेस्चर्स को समझना. लाइक हाउ द क्रॉप इज रिएक्टिंग टुवर्ड्स द नेचर. उसके जेस्चर्स आप समझ सकते हैं कि रोल हुआ तो उसको पानी की जरूरत है. सो दिस इज द थिंग. क्रॉप रोटेशन एंड मैनेजमेंट. क्रॉप रोटेशन एंड मैनेजमेंट अगर आप देखें तो क्रॉप रोटेशन होता है कि आप एक ही क्रॉप को पूरे साल भर में नहीं उगा रहे हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स उगा रहे हैं. क्योंकि जो सीजन है, जैसे कि एक सीजन है उसमें आपने राइस उगा लिया, एक सीजन है आपने उसमें वीट उगा लिया. सो दिस इज व्हाट क्रॉप रोटेशन इज अबाउट. एंड अगर आप एक ही चीज़ को करते रहेंगे, जैसे कि मैं ये मान के चलूँ, अगर आप वीट उगा रहे हैं ऑल ओवर द ईयर, तो जो पेस्ट आते हैं उनको तो अच्छा लगेगा कि भाई देखो अब एक ही टाइप के पेस्ट हैं, वो बार बार आ रहे हैं, उन्हें पता है कि भाई हमें यहाँ खाना है. आपने अगर क्रॉप रोटेट कर दी तो उनके लिए भी ढूंढने की जगह होगी, भाई ये तो हम नहीं खा सकते, वी आर नॉट यूज टू इट. सो वी हैव टू सी दैट्स हाउ कि हमको करना पड़ेगा. अब जैसे कि एक बहुत नॉर्मल एग्जांपल है, साउथ इंडिया में जो होता है राइस, जो पैडी फील्ड पे उगाया जाता है, उसमें ढेर सारा नाइट्रोजन होता है, उसमें ढेर सारा नाइट्रोजन यूज करता है फ्रॉम द सॉइल.
सो आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ राइस वहाँ पे पल्सेस उगाई जाती हैं, जैसे कि मूंग की दाल हुआ, काला चना हुआ, क्योंकि वो उतना न्यूट्रिशन या नाइट्रोजन अपने आप अंदर नहीं लेती हैं। इन द सेम फील्ड पल्सेस लाइक स्पेशल प्लांट जो लेग्यूम्स होते हैं उनको लगाया जाता है। उनका काम क्या होता है, वो नाइट्रोजन वापस सॉइल के अंदर छोड़ते हैं। तो उन्होंने नाइट्रोजन जब छोड़ी, फिर अगले सीजन में जब आप उगाने जाएंगे राइस, सो यू हैव द इनफ नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन आपका राइस लेके गया था, वही न्यूट्रिशन, वही नाइट्रोजन आपको पल्सेस वापस दिखेगी। सो दिस इज हाउ वी रिड्यूस, एंड दिस इज ऑल्सो लाइक हाउ द फर्टिलाइजर के जो बिल होते हैं वो भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी एग्रोनॉमी इन्वॉल्व्स प्लानिंग क्रॉप रोटेशन टू ब्रेक पेस्ट एंड डिसीज साइकिल। जैसे कि मैंने आपको बताया एक पेस्ट कैसे करता है, इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, enhance nutrient cycle, crop management practice also includes planting density, irrigation and harvesting techniques. सो इसमें डिफरेंट प्लांटिंग डेंसिटीज भी होती हैं, लाइक इरिगेशन कब पानी हमको देना है कब नहीं देना है। डिफरेंट हार्वेस्टिंग टेक्निक्स यूज होती हैं, लाइक राइस के लिए एक हार्वेस्टिंग टेक्निक अलग होगी एज कंपैरिजन टू आपने जो मूंग की दाल या लेग्यूम्स जो भी आपने उगाए हैं उसके लिए एक अलग होगी। पेस्ट एंड वीड मैनेजमेंट, सो ये नॉर्मली किस लिए करा जाता है, ये इसलिए करा जाता है सो दैट वी आर स्टॉपिंग बग्स डिसीज एंड वीड्स जो हमारे क्रॉप को रुइन कर रहे हैं। एक बहुत ही स्मार्ट अप्रोच होती है आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जो भी इसमें काम में आती है। अब जैसे नॉर्मली इसके एक एग्जांपल देखते हैं। एक कॉटन फार्मर है दैट इज फेसिंग अ मेजर अटैक फ्रॉम द पिंक ब्रोवॉर्म, ऐसे इसका नाम होता है, PINKBOLLWORM, जो प्रॉपर इसकी स्पेलिंग ये है। सो इंस्टेड ऑफ स्प्रेइंग केमिकल्स, एग्रोनॉमिस्ट जो आपको बोलते हैं कि भैया इसकी जगह आईपीएम टेक स्ट्रेटेजी को आप यूज करो। इंस्टॉल करे जाते हैं फेरोमोन ट्रैप्स टू कैच द मेल मॉथ, स्प्रे करा जाता है नीम बेस्ड पेस्टिसाइड, एंड जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो तब यूज करा जाता है जब डेंजर लेवल के ऊपर पेस्ट पॉपुलेशन हो जाती है। ठीक है, सो नाउ वी आर सीइंग एग्रोनॉमिस्ट वर्क ऑन द स्ट्रेटजीज टू कंट्रोल पेस्ट। कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज हो सकती है वो मैंने आपको बताई थी। फेरोमोन ट्रैप्स लगाए जाते हैं, नीम बेस्ड पेस्टिसाइड यूज होते हैं। ये मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था कॉटन फार्मर्स के लिए, ये उसके लिए, सबके लिए अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। कंट्रोल पेस्ट डिसीज एंड वीड्स दैट कैन अफेक्ट क्रॉप यील्ड, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसका एक एग्जांपल मैंने आपको बताया। अप्रोचेज आर कॉमनली यूज्ड कंबाइनिंग बायोलॉजिकल, कल्चरल एंड केमिकल कंट्रोल मेथड। तो इन तीनों का मैंने एग्जांपल बताया। बायोलॉजिकल यूज लाइक फेरोमोन ट्रैप्स लगाए गए, कल्चरल यूज जो आपका नीम बेस्ड पेस्टिसाइड आपने यूज करा, एंड द केमिकल कंट्रोल मेथड तब यूज आया सबसे एंड में जब ओवर पॉपुलेशन हो गया, लाइक वी आर नॉट गोइंग टू stop this with these techniques, so it's about danger level, now we are using that technique. Now we are going to see technology integration. So what is technology integration, ये आपको बहुत नाम से भी समझ में आ रहा होगा। हाई एंड टूल्स जिनको यूज करा जाता है, जैसे कि जिससे कि हम प्रिसीजन फार्मिंग कर सकते हैं। प्रिसीजन फार्मिंग इसका मेन मोटिव होता है। प्रिसीजन फार्मिंग क्या हुआ, आपने जीपीएस लगा रखे हैं, ड्रोन्स हैं आपके पास, डिफरेंट सेंसर्स हैं, जो बहुत सुपर एफिशिएंट होता है। और टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें इंडियन टर्म्स के ऊपर, तो हम ये होता है कि जो सॉइल कार्ड स्कीम हमने चलाई, सॉइल कार्ड स्कीम के बारे में आपको बताया था। सॉइल कार्ड स्कीम क्या होता है, सॉइल का आधार कार्ड, आधार कार्ड रिपोर्ट कार्ड। सॉइल को आपने लिया, आपने उसे टेस्ट किया, यू आर गेटिंग उसके हिसाब से कौन सा आपको फर्टिलाइजर चाहिए, नीम कोटेड यूरिया चाहिए, डीओ डैप चाहिए, क्या चीज़ चाहिए आपको, सब आपको मिलेगा वहाँ पे उस सॉइल को चेक करने के बाद। Advancement in technology plays a crucial role in modern agronomy. Precision farming, remote sensing, and data
analytics help agronomists to make informed decision about planting, fertilization, irrigation and pest control. इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से आप प्लांटिंग कब करनी है, फर्टिलाइजेशन कैसा चल रहा है, इरिगेशन के लिए कब पानी चाहिए, पेस्ट कंट्रोल, सब चीजें आप देख सकते हैं विद द डिफरेंट सेंसर्स एंड ऑल दोस थिंग्स. नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी. सो व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी? जिससे कि आपके क्रॉप कवर क्रॉपिंग जो आपकी होती है, कवर क्रॉपिंग आपकी करी जाती है आपके विदाउट द सीजन, लाइक द ऑफ सीजन में अगर आपको कोई चीज मिल रही है, so that is coming under controlled environment. कंट्रोल एनवायरनमेंट में चीज का बनाई जा रही है, लाइक जैसे कि इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं. प्लांटिंग ऑफ राइस से पहले जो पंजाब वगैरह के फार्मर्स होते हैं, दे माइट ग्रो सम ग्रीन मैन्योर क्रॉप. ग्रीन मैन्योर क्रॉप क्या होता है? दनियाचा करके एक होता है, उसको ग्रो करने के लिए छोड़ दिया था. इसकी स्पेलिंग मैं आपको बताता हूँ. DHAINCHA, डनियाचा. ये एक ग्रीन मैन्योर क्रॉप होती है जिसे उगाया जाता है. उसको 40 से 50 दिन छोड़ दिया जाता है कि भाई तू 40 से 50 दिन रहे इसके अंदर. नाउ देन द प्लो, उसके बाद वो प्लो करते हैं वेट फील्ड्स के अंदर, जिसकी वजह से रिच ऑर्गेनिक मैटर सॉइल के अंदर मिल जाता है एंड सॉइल हेल्दी हो जाती है नेचुरली, without using any fertilizer, without using anything. We are just doing this. So now we see sustainability, a global concern about environmental impact and the resource conversation grow. Conservation grow. Agronomy places an emphasis on sustainable practices. This include promoting conservation tillage, cover cropping, and other techniques that reduce soil erosion to improve water quality, enhance overall environmental stewardship. ठीक है. Now we are seeing research and innovation. रिसर्च एंड इनोवेशन, लाइक एग्रोनॉमिक्स हमेशा एक बेटर क्रॉप या बेटर वेराइटीज की तरफ देखते रहते हैं. जैसे कि हमारा आई कार्ड जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसका ये काम है कि क्लाइमेट स्मार्ट वेराइटीज को बनाए. ड्रॉट रेसिस्टेंट चिकपीस को उन्होंने डेवलप करा सेंट्रल इंडिया के लिए. फ्लड टॉलरेंट राइस को उन्होंने बनाया कोस्टल ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल के रीजन के लिए. तो ये डिफरेंट अचीवमेंट्स हैं जो हमारे आईकार ने करे हैं. Research and innovation. Agronomists engage in research to develop new crop variety, improving existing one, and discover innovative practices. It can enhance agriculture sustainability and the productivity. This is what आपका की पार्ट ऑफ एग्रोनॉमी हम कह सकते हैं. 7 पॉइंट्स देवर. सो अगर हम आपको ऐसे दिखाएं, हमको एक हर चीज़ में एक एग्जाम्पल ऐड करेंगे सो दैट यू आर गेटिंग थिंग्स बेटर. रियल लाइफ एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छे होते हैं. So now we are going to see our next topic, that is scope of agronomy. Scope of agronomy, अब आपने देखा होगा, आपने इतनी सारी चीज़ों को देखा. Now you would understand the scope of agronomy is very huge. It is very big. हर चीज़ में आपको एग्रोनॉमिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी. आपको डिफरेंट वेरियस फैक्टर्स जो इससे अलाइन होते हैं, आपको उनको देखना होगा. The scope of agronomy is broad and encompasses with various aspects of crop production, soil management, and sustainable agriculture. As a critical field within the agriculture science, agronomy offers range of different opportunities and contributes significantly to the global food supply and environmental sustainability. तो आप देखते हैं इससे ग्लोबल फूड सप्लाई भी को मैनेज करी जाती है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी हम देखते हैं. तो बहुत सारे इसमें फैक्टर्स आ जाते हैं. नाउ सम की एरियाज ऑफ एग्रोनॉमी. की एरियाज ऑफ एग्रोनॉमी को हम देखेंगे. द फर्स्ट इज crop production. So crop production is like selecting the right crop for the right place. अब जो एग्रोनॉमिस्ट हैं उनके काम ये होते हैं
कि जैसे बाजरा होता है या ग्वार होता है, ये एरिड रीजन के लिए होता है। सैंडी सॉइल ऑफ राजस्थान के लिए, एंड इट इज नॉट फॉर द वाटर लविंग, जो आपके कहते हैं आपकी क्रॉप्स होती है जैसे शुगर केन हुआ, राइस हुआ, ये वहाँ के लिए नहीं है। तो ये एग्जाम्पल आपको समझाता है कि राजस्थान जो आपका है, राजस्थान में बाजरा या ग्वार उग सकता है, वहाँ पे आपके लिए शुगर केन और राइस नहीं उग सकता। ये है क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में। सेलेक्टिंग एंड ब्रीडिंग, choosing suitable crop for specific environment, considering factors such as soil type, climate, and pest resistance. ठीक है, planting and establishment, optimizing method for seed sowing, seeding propagation, and ensuring healthy crop establishment. So इसमें आप देखते हैं कि कैसे एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए कि कैसे हम सीड को सो कर रहे हैं, सीड का प्रोपोगेशन कैसा हो रहा है, हेल्दी क्रॉप का इस्टेब्लिशमेंट वहाँ पे हो सकता है नहीं हो सकता। ये सब सिलेक्शन एंड ब्रीडिंग एंड एनवायरनमेंट के कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, लाइक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर होना चाहिए, जो कि आपका एग्जांपल आपको मैंने बताया था उसके हिसाब से। क्रॉप मैनेजमेंट, प्रोवाइडिंग नेसेसरी केयर थ्रू आउट द क्रॉप सीजन, ग्रोइंग सीजन, इंक्लूडिंग वीड कंट्रोल एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इरिगेशन, पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट। सो क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर ये भी आता है कि कैसे आप उसको, नेचर को आप मतलब कैसे आप उसकी केयर कर रहे हैं, ग्रोइंग सीजन में उसे क्या चीज़ चाहिए, कितना पानी चाहिए होता है, इंक्लूडिंग द वीड कंट्रोल्स, वीड्स उसके आसपास नहीं होंगे, वीड्स उगेंगे तो वो जो न्यूट्रिएंट आपकी क्रॉप को चाहिए वो वीड्स पहले ले जाएंगे, वीड ग्रो वेरी फास्ट एज कंपैरिजन टू आपकी क्रॉप। न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट, इरिगेशन, कब पानी चाहिए, पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट, हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट पोस्ट हार्वेस्टिंग हैंडलिंग। अब आप कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं फॉर द हार्वेस्टिंग, कि आप हाथ से उसको लगा रहे हैं या आप उसको किसी मशीन के थ्रू लगा रहे हैं। इफ यू यूजिंग विद द मशीन, यू आर गोइंग टू डू वर्क एफिशिएंटली एंड मोर क्विकली अबाउट इट, बट हाथ से वो चीज़ स्लो हो जाएगी। पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग होता है कि आप कैसे उसको कटाई करने वाले हैं, और यू आर गोइंग टू कट द क्रॉप फ्रॉम द ग्राउंड, कैसे आप उसे स्टोर करेंगे, कैसे आप उसको करेंगे, मेंटेनिंग द क्वालिटी एंड कि आपकी क्रॉप भी बर्बाद ना हो। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी implementing efficient harvesting techniques and proper storage practices to minimize losses and maintain the quality. ठीक है, now we are going to see soil management. सॉइल मैनेजमेंट बेसिकली अगर हम देखें तो सब चीज़ों पर एक मेन फोकस होता है, सॉइल मैनेजिंग सॉइल की हेल्थ और सॉइल को सॉइल इरोजन से कैसे बचाया जाए। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। एक छोटा सा हिल फार्म है ऑन द वेस्टर्न घाट या हिमालय, हम किसी भी मान लेते हैं। तो एक एग्रोनॉमिस्ट आपको आएगा, बताएगा कि आपको यहाँ पे टेरेस फार्मिंग करनी है या कॉन्टूर प्लोइंग करनी है। फ्लोइंग अक्रॉस द हिल, आपको हिल के अक्रॉस जाना है, लाइक एक ऐसे हिल है तो आपको हिल के अक्रॉस जाना है, यू डोंट हैव टू गो डाउनवर्ड्स, आपको ऐसे ऐसे करना है, सो दैट यू आर मेकिंग अ स्टेप्स और अ लेडर। ठीक है, तो अगर गलती से बारिश यहाँ पे होती है, क्योंकि बारिश होगी क्योंकि आप वेस्टर्न घाट या हिमालय रीजन के ऊपर हैं, तो जो वॉश ऑफ, अगर आपने दो हिल्स, मैं थोड़ा सा एक बेटर एग्जांपल, मतलब इसी को थोड़ा एक बेटर विजुअलाइजेशन बनाने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। सपोज करिए आपके पास दो हिल्स हैं, एक पे आपने उगाया है अक्रॉस स्टेप्स में आपने फार्मिंग करी, एक पे आपने करी है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अगर बारिश आएगी तो जो आपकी क्रॉप है, पानी यहाँ पे एज अ स्टेप्स की तरह जल्दी आसानी से जाएगा, सॉइल इरोजन कम होगा एज कंपैरिजन टू यहाँ पे। यहाँ पे क्योंकि आपने एक प्रॉपर उसे चैनल दे रखा है कि भाई पानी बरसेगा यहाँ पे बहेगा एंड आपकी सॉइल यहाँ से चली जाएगी जल्दी से जल्दी। तो ये है नॉर्मली हाउ यू आर मैनेजिंग द सॉइल। सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस।
soil management, understanding soil property, analyzing soil composition, fertility, and the structure to determine the sustainability for different crops. डिफरेंट क्रॉप्स मतलब कि कैसे कि आपको किस आपके रीजन में अब कैसी चीज़ें आपको उगानी है। बेसिकली सब चीज़ों का एक मेन मोटिव यही होता है कि कैसे आपको सब चीज़ों को मैच करना है। फेवरेबल एनवायरनमेंट, फेवरेबल रेनफॉल, फेवरेबल आपकी सॉइल की प्रॉपर्टी, कैसा आपका एरिया है, वो सब चीज़ें जब एक साथ मिलेंगी तब आप जाके बेटर चीज़ों को उगा पाएंगे। इम्प्रूविंग सॉइल हेल्थ, कौन सी क्रॉप के रोटेशंस, क्रॉप की कवर क्रॉपिंग करनी है आपको, ऑर्गेनिक मैटर ऐड करना है, जो भी चीज़ आपको करनी है उससे सॉइल की फर्टिलिटी को एनहांस करना है। इम्प्लीमेंटिंग इम्प्रूविंग सॉइल हेल्थ इज इम्प्लीमेंटिंग प्रैक्टिसेस लाइक क्रॉप रोटेशन, कवर क्रॉपिंग, कवर क्रॉपिंग इज लाइक एनवायरनमेंट कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट पे क्रॉपिंग करना, organic matter, addition to enhance soil fertility and the health of the soil। ठीक है। मिनिमाइजिंग सॉइल इरोजन, मिनिमाइजिंग सॉइल इरोजन का आपको एग्जांपल मैं आपको पहले दे चुका हूँ। यूटिलाइजिंग टेक्निक लाइक कॉन्टूर प्लोइंग, टेरेसिंग एंड द वेजिटेटिव कवर टू प्रिवेंट सॉइल लॉस। जैसे कि आपने देखा है कहीं पे, अगर हम देखते हैं यूएस वगैरह में, यू वुड सी कि वहां पे आपको इतनी धूल नहीं मिलती। धूल क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वहां पे खुला लैंड का एरिया नहीं है। जहाँ पे भी उनके पास सॉइल है, दे आर गोइंग टू कवर इट विद द ग्रासेस एंड दे आर गोइंग टू मेंटेन इट। इससे क्या होगा? अब ग्रासेस वहां पे कवर होगा पूरे टाइम। ग्रासेस होने की वजह से वहां पे आपको जो सॉइल है वो खाली नहीं है, एंड वेन एवर देयर इज अ विंड कमिंग तो वो सॉइल नहीं उड़ेगी, आपको धूल नहीं मिलेगी। सो दिस इज वाई वी से कि यूएस इतना आगे, एंड यूएस में इतनी धूल क्यों नहीं होती है एज कंपेरिजन टू हमारे इंडिया। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी वाटर मैनेजमेंट। वाटर इज समथिंग दैट शुड बी मैनेज्ड वेरी वेल। पानी हमारे पास भले ही 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, बट वी डोंट हैव यूजेबल वाटर फॉर दैट। वो सॉल्टी वाटर है, उसको हम यूज नहीं कर सकते, उसको हम इरिगेशन में भी यूज नहीं करते हैं, बिकॉज एल्कलिनिटी उसमें ज्यादा होती है, सॉइल उसमें सॉल्ट कंटेंट ज्यादा है। सो अब जैसे कि हम देखते हैं, हमारे इंडिया में हम चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। ना महाराष्ट्र में पानी नहीं, वाटर फे वाटर स्केसिटी वहाँ बहुत दिख रही है। एग्रोनॉमिक्स का काम क्या होता है कि उन्होंने जो इरिगेशन था, उस इरिगेशन के लिए एक ड्रिप इरिगेशन टेक्निक थी, उसे करा कि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इन अवर लाइक इन अवर फार्मिंग टेक्निक्स। तो जहाँ पे आपको पानी ढेर सारा चाहिए होता है वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन लगाया गया। ड्रिप इरिगेशन का काम क्या था? इंटरनली हम सॉइल के अंदर ट्यूब्स को डालेंगे जिससे वो पानी कंटिन्यूस प्रोवाइड करती रहेंगी टू द क्रॉप। लाइक सपोज करिए आपकी एक क्रॉप है जो ये उगी हुई है, ये सॉइल है, एंड यहाँ नीचे एक पानी की ट्यूब जा रही है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे छेद हो रखे हैं। दे हैव होल्स इन इट, एंड वो होल्स यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। भले ही बाहर साइड पे आप ये मान के चलिए सूखा है, लेकिन अंदर से सॉइल के अंदर पानी जा रहा है, और ये सिस्टम आपका 50% तक वाटर क्वालिटी सॉरी वाटर को सेव करता है एंड आपकी यील्ड को भी बेटर करता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी water management, irrigation practices, selecting efficient irrigation method, and scheduling irrigation based on the crop need and the weather condition to conserve water। लाइक जैसे हमें पता है कि बारिश होने वाली है, तो बारिश होने से पहले हम उसमें इरिगेशन के लिए पानी नहीं डालेंगे। ये भी एक एग्रोनॉमिस्ट या आपके वेदर डिपार्टमेंट ने आपको बताया कि आपको बारिश होने वाली, तो यू आर नॉट गोइंग टू पुट वाटर इन द क्रॉप्स। ड्रेनेज मैनेजमेंट, इंश्योरिंग प्रॉपर ड्रेनेज टू प्रिवेंट वाटर लॉगिंग एंड द रूट डैमेज। अगर पानी भरा रह गया, पानी ज़्यादा हो गया, तो वाटर लॉगिंग हुई। वाटर लॉगिंग से क्या होगा? कीड़े जो आपके पास पेस्ट वगैरह होंगे, दे विल डाई ओवर देयर, एंड उससे
आपकी क्रॉप डैमेज हो सकती है, या ढेर सारा पानी जब भरा होने के बाद जो आपकी रूट आपकी सॉइल है वो पोरस हो जाती है, जिसकी वजह से जो पार्ट आपको यहाँ दिखना चाहिए था, अगर पानी ज़्यादा है तो ये अगर पोरस हुई तो you will be going like this and roots will be exposed. Now, drought tolerance, utilizing drought tolerance, resistant crop variety, and management practices to cope up with the water scarcity. जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था यहाँ पे महाराष्ट्र का, लाइक हाउ एग्रोनॉमिस्ट हेल्पिंग ओवर देयर, ये उसका बेस्ट एग्जाम मतलब बेस्ट एग्जाम्पल है, बेस्ट यूज है. इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज लाइक कैसे आप अ, इसको हम फ्यूचर ऑफ फार्मिंग भी कह सकते हैं, लाइक थोड़ा सा लाइक प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट, जहाँ पे हम चीज़ों को ग्रो कर रहे हैं, हम उतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे केमिकल थिंग्स का, सो दैट वी आर अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट. इसका एक एग्जांपल देते हैं कि अगर एक एग्रोनॉमिस्ट है, वो पंजाब में जाता है तो वहाँ पे जाके वो बफर स्ट्रिप लगवाता है. बफर स्ट्रिप इज लाइक ट्रीज जो अलोंग द एज ऑफ द फील्ड लगाए जाते हैं. इनका काम क्या होता है कि जब भी एक विंड ब्रेक होगा, कि तेज हवा कहीं से आई है, तो वो सॉइल इरोजन, जो विंड इरोजन होता है, उससे प्रोटेक्ट करेगा. और आपके लिए जब उसको काटने का टाइम आएगा तो आपको वहां से वुड भी मिलेगी, दैट इज जनरेटिंग एक्स्ट्रा इनकम. ओके, सो दिस इज व्हाट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का एग्जाम्पल. रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस emission, implementing practices that reduce tillage, nutrient management, bioenergy production to mitigate climate change. जैसे कि आपने सोलर प्लांट्स लगा लिए, सो दैट इज हाउ आप अपने लेवल पे एक सोलर अपने पैनल लगा रखा है, दैट इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, एंड जिसकी वजह से आप बायो एनर्जी यूज कर रहे हैं. न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, हाउ यू मैनेजिंग योर न्यूट्रिएंट्स, कैसे आप न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को आप देख चुके हैं कि अगर आप राइस उगा रहे हैं तो राइस के बाद आप जो नाइट्रोजन चली गई उसमें से, नाइट्रोजन का आपका डाल नाइट्रोजन का आपका मैन्योर डालने से बेटर, या नाइट्रोजन फिक्सेशन से बेटर आपने वहाँ पे एक और क्रॉप ग्रो कर ली. जो आपके पल्सेस थे उन्होंने नाइट्रोजन फ्लश कर दिया सॉइल के अंदर ऑटोमेटिकली, सो यू आर नॉट यूजिंग द केमिकल्स ओवर देयर. नाउ नेक्स्ट, कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी, promoting habitat creation and integrated pest management to protect beneficial insect and wildlife. ये हम देखते हैं कि आपने बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने की कोशिश करी. बायोडाइवर्सिटी इज लाइक आपने उन पेस्ट को अपने पास रखा जो आपके लिए, आपके सॉइल के लिए बेटर थे. आपने उन्हें रखा कि भाई तुम हमारे पास रहो, यू आर फाइटिंग विद अदर अनदर पेस्ट जो उनकी हमें ज़रूरत नहीं है. मिनिमाइजिंग pollution, utilize practices that reduce fertilizers and pesticide runoff, thereby protecting the water quality. फर्टिलाइजर का हमने यूज़ कम करा, पेस्टिसाइड्स का हमने यूज़ कम करा, जिसकी वजह से जो वाटर क्वालिटी है वो भी इन्हांस रही. क्योंकि जो भी आप पानी उसमें डालते हैं तो वो जाता तो उसी के अंदर है, धीमे धीमे जो पानी आपने डाला है वो सीप होके इनसाइड जाता है, जो ग्राउंड वाटर लेवल होता है उसमें भी काम में आता है. तो आप पोल्यूशन नहीं कर रहे, यू आर मिनिमाइजिंग द पोल्यूशन फॉर दिस. प्रिसीजन फार्मिंग. प्रिसीजन फार्मिंग इज लाइक व्हाट द फ्यूचर ऑफ फार्मिंग. असली में फ्यूचर ऑफ फार्मिंग इसी को हम कहेंगे. एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी एक फ्यूचर है, बट उसके साथ जो प्रिसीजन फार्मिंग है ये भी एक फ्यूचर ऑफ फार्मिंग है. इसको हम देखते हैं यूटिलाइजेशन टेक्निक, सेंसर्स, ड्रोन्स, डेटा एनालिस्ट टूल्स फॉर प्रिसीजन एप्लीकेशन of input monitoring crop health and optimizing management decision. Different tools, sensor जिसको आपको हम पहले बता चुके हैं. This is the future of this is the future of technology.
that are being used in agriculture. Sensors हैं, drones हैं, different आप data निकाल रहे हैं. Data is like data tools is like for the soil. Variable rate application, tailoring input like fertilizer, irrigation based on specific need within the field to improve the efficiency of reduced weight. फर्टिलाइजर का यूज़ करना, इरिगेशन का, ये बेसिकली जो आपने पहले पढ़ा है उसी का एक इन्हांस्ड वर्जन है इन अ मोर टेक्निकल वे. किसी चीज़ को ओवर यूज़ नहीं करना, चीज़ों को मेंटेन करके रखना, एंड आपके पैसे भी बचते हैं इससे. साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट. साइट साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट इज लाइक जो आपके पास परफेक्ट एरिया है. जैसे कि आपके पास एक एरिया है, आपको इसका पता है कि भाई क्या चीज़ करनी है. सो यू आर वेरी choosy about the thing what you are doing in this area. Managing different area of the field based on the unique character to maximize productivity and resources. आपको इसके बारे में सब कुछ पता है, यहाँ पे हम क्या उगा सकते हैं, क्या चीज़ कर सकते हैं. सो दैट इज द थिंग कि आप उसको मैक्सिमाइज कर रहे हैं. जैसे कि अगर हम देखते हैं इसका एक एग्जांपल, जैसे बिग सिटीज आपकी हुई मुंबई, बेंगलुरु एंड आपका दिल्ली हुआ. तो यहाँ पे कंपनीज ने एक बहुत ही स्पेसिफिक एरिया साइट स्पेसिफिक साइट मैनेजमेंट बना रखी है. यहाँ पे ये हाई वैल्यू क्रॉप्स को उगाते हैं. जैसे कि अब आप देखते हैं कि देखिए सीन आजकल लेटेस चलना बहुत शुरू हो गया है. बेसिल बेसिल सीड्स आपके शुरू हो चुके हैं, आपके डिफरेंट हर्ब्स शुरू हो चुकी हैं. तो ये इंडोर फार्मिंग करते हैं यहाँ पे. इन्होंने इसको लिया, इस एरिया को पूरा कवर्ड करा. नाउ जो बाहर का एनवायरनमेंट है दैट इज नॉट अफेक्टिंग दिस एनवायरनमेंट. ओके. सो यहाँ पे अब आप कंट्रोल ग्रोथ कर रहे हैं अबाउट द लेटेस, अबाउट लाइक फॉर द लेटेस, फॉर बेसिल, फॉर डिफरेंट हर्ब्स, एंड आप उसे ग्रो कर रहे हैं. आपने बोल दिया कि भाई यहाँ पे हमने करी है ऑर्गेनिक फार्मिंग. नाउ व्हेन यू डूइंग द ऑर्गेनिक फार्मिंग ओवर हियर, उसका प्राइस बढ़ जाता है. ऑर्गेनिक थिंग्स हमेशा महंगी होती हैं. एंड उसको यहाँ से रेस्टोरेंट्स में गए, आपके सुपरमार्केट में गए, एंड यू आर परचेजिंग दैट ऑन हाई प्राइस. ओके. नाउ इमर्जिंग एरियाज, वर्टिकल फार्मिंग, growing crop in a controlled environment like greenhouse for yield, for increased yield and to reduce environmental impact. जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रिसीजन एग्रीकल्चर उसी का थोड़ा एक इनहांस्ड वे ऑफ इमर्जिंग फार्मिंग इज लाइक वर्टिकल फार्मिंग. आपने एक लैंड लिया जहाँ पे आप प्रिसीजन करके आपको सब पता था कि इसमें क्या करना है, वहीं पे आपने अब इस एरिया में आपने पूरे में आप नहीं डालते हैं सॉइल, आपने छोटे-छोटे अपने कंपार्टमेंट्स की तरह बना रखा है, एंड इन दोज़ कंपार्टमेंट्स आप चीज़ों को ग्रो कर रहे हो. इट्स लाइक डिफरेंट आपने पॉट्स की तरह लगा रखे हैं एंड वो उस चीज़ को ग्रो कर रहे हैं कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर. जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, यूटिलाइजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टू डेवलप क्रॉप्स with improved traits like disease resistance and drought tolerance. आयकार का काम क्या था, वो जो मैंने आपको बताया था वही आयकार यहाँ पे भी करता है कि डिफरेंट अपने जेनेटिक्स को यूज़ करा है, डिफरेंट ट्रेड्स अपने ऐसे डेवलप करें कि अगर पानी कम भी हो गया तो भी हम इसी को ग्रो कर पा रहे हैं. ठीक है. इसका बेस्ट एग्जांपल आपको मैंने राइस का दिया था, ड्रॉट रेजिस्टेंस राइस वैरायटी जो आयकार ने डेवलप करी थी. दिस इज व्हाट जेनेटिक्स इज ऑल अबाउट. ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो मैं आपको बता रहा था पहले भी, producing crop without synthetic fertilizer and pesticides. Synthetic fertilizers and pesticides to improve environment and the human health. आपको कैसे लेटेस वगैरह ऑन द हाई प्राइस मिलता है ऑन द नेम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो यहाँ से है. द स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी continues to expand as new technologies and challenges emerges. जैसे जैसे आप इसको एक्सपैंड करेंगे वैसे वैसे नए चैलेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे. Agronomics play a crucial role in ensuring sustainable food production for growing population while protecting the environment. एग्रोनॉमिक्स का काम जो है वो ये है कि आपको फ्रूट प्रॉपरली मिलता रहे, जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसकी नीड्स को मीट करे, एंड उसके साथ साथ इन्वायरमेंट को भी बचा के रखे. क्योंकि इन्वायरमेंट अगर है
तो हम हैं वरना कुछ नहीं। So now we are going to see relation of agronomy to other sciences. अब हम देखते हैं एग्रोनॉमी दूसरे साइंसेस के रिलेशनशिप में कैसा है। अगर हम देखें तो एग्रोनॉमी कभी अकेला नहीं, इट इज़ अ इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि एक पूरी टीम है, एग्रोनॉमी उसका कैप्टन है। इट एक्ट्स एज अ कैप्टन, लाइक बोरोइंग नॉलेज फ्रॉम अदर फील्ड्स, जो उनके स्पेशलिस्ट हैं उनसे अपनी नॉलेज को ले रहा है। And in short, we can say it is a journal doctor, like a physician. He knows everything and उसको normal symptoms पता चल जाते हैं, and then he passes on to different fields कि भाई आपको blood कि now if you have to do a blood test, you have to go to the pathology. If you have some major deficiency or disease, you have to take these medicines. So that's how agronomy deals for the science. Agronomy deals with the other science. Okay. Agronomy is a branch of agriculture science. It focuses on crop production, soil management. It is an interdisciplinary field that draws knowledge from various sciences to enhance agriculture practices. ये है basically इसका काम. Now we are going to see some key relationship between agronomy and other sciences. So first one is the soil science. It is also it can also be seen as a soil doctor. सॉइल डॉक्टर कि आपको सॉइल की सारी प्रॉपर्टीज को पता होना चाहिए कि क्या वो क्लेई है, वो सैंडी है, वो एसिडिक है, किस टाइप से। अगर एक एग्जाम्पल देखें तो जैसे सॉइल का सैंपल लिया जाता है, जैसे कि एक नॉर्मल आदमी का ब्लड टेस्ट होता है, एग्रोनॉमिस्ट उसे देखता है सॉइल में किस चीज़ का कंटेंट कम है। जैसे जिंक अगर कम है तो वो रिकमेंड करेगा कि जिंक सल्फेट को आप ऐड करें टू द राइस क्रॉप। राइस में जिंक की कमी है तो उसको जिंक सल्फेट ऐड करने के लिए कहा जाएगा एंड आपकी राइस की क्रॉप सही हो जाएगी। ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी यूज़ करा है। आई एम यूजिंग सेम एग्जाम्पल फॉर डिफरेंट सिनेरियो सो दैट आपको पता रहे कि आपको कैसे रिलेट करना है, हाउ द थिंग्स आर रिलेटेबल। आगे से पीछे तक आप जहाँ पे भी देखेंगे हमारा जो मेन मोटिव निकल के आता है, हमारी क्रॉप अच्छी होनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई एम स्टिकिंग विद वन एग्जाम्पल so that you so that I can explain better and you can understand better. Okay. Soil science. Agronomy heavily relies on soil science to understand the physical, chemical, and biological properties of soil. Knowledge of soil fertility, structure, and the composition is crucial for optimizing crop growth and yield. जैसे कि मैंने आपको बताया था, सॉइल क्लेई है, सैंडी है या एसिडिक है, उस हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि व्हाट क्रॉप कैन बी ग्रोन ऑन दैट एंड व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस, कितना आप उसमें से ग्रोथ ले पाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड क्रॉप साइंस. सो क्रॉप साइंस इज लाइक प्लांट बायोलॉजिस्ट. These are like two brothers. Crop science is a deep study of plant itself. क्रॉप की जेनेटिक्स के बारे में, कैसे वो ग्रो करती है, और एग्रोनॉमी उसका प्रैक्टिकल पार्ट है, लाइक हाउ वी आर यूजिंग द साइंस इन द फील्ड टू ग्रो मोर फूड. ओके. सो एग्रोनॉमी एंड क्रॉप साइंस आर क्लोजली रिलेटेड, दो भाई की तरह. द एग्रोनॉमी with agronomy often being considered as a subset of crop science. क्रॉप साइंस की एक छोटा पार्ट है. Crop science cover a broader range of topics related to the genetics, breeding, physiology, and management of crops, while agronomy specifically focus on the practice aspect of the crop production. जो आपका क्रॉप साइंस है वो प्लांट को अंदर से जानता है, एंड जो आपका एग्रोनॉमी है
वो उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स लाता है कि भाई अब आप अंदर से आपको सब कुछ पता है, नाउ हाउ ही इज परफॉर्मिंग फ्रॉम द आउटसाइड। तो इट्स लाइक तन की शक्ति मन की शक्ति बॉर्नवीटा। Now we are going to a meteorology and climatology. So agronomist must be a part-time weather forecaster. इंडिया 60% डिपेंड करता है रेनफॉल के ऊपर। तो एक एग्रोनॉमिस्ट को पार्ट टाइम वेदर फोरकास्टर होना ही चाहिए। लाइक नोइंग द मानसून फोरकास्ट जो मेट्रोलॉजी से आपको मिलता है इज एसेंशियल फॉर एग्रोनॉमिस्ट टू एडवाइज द फार्मर कि एग्जैक्ट राइट वीक कौन सा होगा टू प्लांट खरीफ मानसून। जैसे कि सोयाबीन और कॉटन हम उगाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए बारिश कब होने वाली है, so that you can grow and you can develop the things better. Now we'll read it out. Understanding weather pattern and climate condition is essential for making informed decision in agronomy. Meteorology helps predict short-term weather events, while climatology provide insight of a long-term climatical trend, with the both of which influence of crop growth and development. मेट्रोलॉजी आपको एक शॉर्ट टर्म बताता है कि भाई बारिश होने वाली है इस वीक के अंदर, जस्ट ग्रो थिंग्स। क्लाइमेटोलॉजी आपको बताता है एक लॉन्ग टर्म में कि भाई ये सीजन इस सीजन से मतलब इस डेट से इस डेट तक रहेगा, इससे इस डेट तक रहेगा, सो यू हैव टू डील विद द थिंग्स अकॉर्डिंग टू दैट। इकोलॉजी, नाउ दीज आर द बिगर पिक्चर साइंटिस्ट। This is all about how the farm as a whole system works, the crops, the good bugs, the bad bugs, the weed, the soil. I mean, it is something जिसको एक नेचुरल बैलेंस की तरह देखा जाता है। इकोलॉजी जहाँ पे सब कोई एक साथ रह रहे हैं। Agronomy consider ecological principles in the management of agriculture ecosystem. The interaction between crops, pests, beneficial organism, and the environment are studied to develop sustainable farming practices that minimize negative impact on the ecology on the ecosystem. Okay. Now the genetics and plant breeding. Genetics and plant breeding is like making hybrids and crossbreeds. Okay. Like दो टाइप के हमारे पास राइस थे, वी आर जस्ट एडिंग दोस एंड वी आर गेटिंग अ न्यू ब्रीड दैट इज, वो अच्छी भी हो सकती है, वो बुरी भी हो सकती है। इट्स नॉट लाइक कि हम अच्छी ही चीज़ हमेशा डेवलप करेंगे। ओके, एंड वी कैन ऑल्सो से जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग से आपको सुपर क्रॉप्स मिलती हैं। अगर मैं पुराना एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया था, एग्रोनॉमिस्ट ने जब टेस्ट किया था डिफरेंट वेराइटीज आपके बासमती राइस की, आई एम अगेन गोइंग टुवर्ड्स द राइस ऑन द सेम एग्जाम्पल सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू बेटर एंड यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। तो आयकार ने बैठ के वो पूसा बासमती 1509 राइस जो था उसको डेवलप करा था, जो हाई यील्ड देता है आपको एंड उसकी हार्वेस्ट भी जल्दी होती है। ओके, सो नाउ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। Plant breeding, genetics plays a crucial role in crop improvement. How you are enhancing your crop. Agronomists work closely with the genetics and the plant breeder to develop new variety of crop that possess desirable traits such as high yield, resistance to disease, adaptability to specific environment and environmental conditions. Okay, so enhancing के बारे में है ये पूरा। Now we are going to entomology. एंटोमोलॉजी कौन है? entomology and plant pathology. Entomology, the one who is the insect expert कह सकते हैं। प्लांट पैथोलॉजी डिसीज एक्सपर्ट, जैसे ह्यूमन की पैथोलॉजी होती है वैसी प्लांट की पैथोलॉजी होती है। एंटोमोलॉजी कौन होता है? डिसीज मतलब इंसेक्ट का एक्सपर्ट। ओके, सो एग्रोनॉमिस्ट क्या करेंगे? हेल्प करेंगे पेस्ट और डिसीजेस से फाइट करने के लिए, इसलिए उनको यहाँ पे भी इनका कनेक्टिविटी होती है। एंड इसका मैं आपको वही एग्जाम्पल दूंगा
लाइक जैसे एक कॉटन का क्रॉप है, उस पे अटैक होता है पिंक बॉलवर्म का, पिंक बॉलवर्म, PINK पिंक, BOLLWORM, ये एक कीड़ा होता है। एंटोमोलॉजिस्ट इसको जानते हैं। और जो वीट होता है उसको रस्ट डिसीज होती है। रस्ट डिसीज ये प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे एग्रोनॉमिस्ट साइंस का यूज करते हैं, एंटोमोलॉजी एंड पैथोलॉजी वालों से, प्लांट पैथोलॉजी से हेल्प लेते हैं, एंड दे फाइंड आउट द सॉल्यूशन कि राइट सॉल्यूशन क्या है। So that is why entomology and plant pathology is necessary. Agronomy integrate knowledge with the entomology and the plant pathology to manage pests and diseases affecting crop. Understanding the life cycle and behavior of insects and pathogens helps developing effective pest disease control strategies. Different strategies का यूज किया जाता है इसलिए। नाउ द केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को हम कह सकते हैं द न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, है ना। जैसे आपको एक चार्ट बनाया जाता है। सो अगर हम देखें, इट इज द की फैक्टर अंडरस्टैंडिंग द फर्टिलाइजर इन द सॉइल। कौन से फर्टिलाइजर्स की जरूरत, लाइक अगर एक इसका एग्जांपल लेते हैं तो केमिस्ट्री कैन एक्सप्लेन व्हाई जिप्सम, जिप्सम जो हमारा होता है उसको हम जो सॉल्टी सॉइल होती है, जो सैलाइन होती है, उसमें हम डाला जाता है जिप्सम को। नीम कोटेड यूरिया, जिसको मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, उसको फर्टिलाइजर को यूज करा जाता है फॉर द रिलीज ऑफ नाइट्रोजन स्लोली इन द प्लांट्स। प्लांट में नाइट्रोजन की कमी होती है, सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है, तो नीम कोटेड यूरिया का यूज करा जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है इसे, ठीक है। सॉइल केमिस्ट्री इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एग्रोनॉमी। Knowledge of nutrient cycles, soil amendment, fertilizer management evolves an understanding of chemical process in the soil plant system. Okay? जैसा मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया था। इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग हर तरफ जरूरी है। टूल्स किससे बनेंगे, आपके इंजीनियरिंग बनेंगे। तो इंजीनियरिंग को हम कह सकते हैं द टूल मेकर्स। ओके, इंजीनियरिंग प्रोवाइड टूल्स एंड टेक्नोलॉजी जो एक एग्रोनॉमिस्ट को चाहिए होती है। मैं पुराना एग्जाम्पल यूज करूंगा, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एक सॉइल है, उसके नीचे यहाँ पे पानी का एक ट्यूब जा रहा है, उस ट्यूब में से धीमे धीमे पानी रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से आप पानी की बचत भी करते हैं, एंड सॉइल भी एंड पानी एंड सॉइल को प्रॉपर पानी भी मिलता रहता है। ओके, एंड ये शुगर केन में यूज किया था। शुगर केन के टाइम पे मैक्सिमम यूज इसका देखते हैं, ड्रिप इरिगेशन का। एंड लेजर लेवलर्स होते हैं जो राइस फील्ड में लगाए जाते हैं, एंड ट्रैक्टर्स में इनका यूज होता है। लेजर लेवलर जो एक लेवल प्रोवाइड करते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। थोड़ा सा सबको ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाऊंगा विद द हेल्प ऑफ फिगर्स एंड ऑल दोस। ओके, सो इंजीनियरिंग, agriculture engineering contributes to agronomy by providing solution for efficient water management, irrigation system, machinery design, and other technological advancement that improves agriculture practices. Okay, innovation is like engineering. Now comes the economy. इनको हम कहेंगे बिजनेस एक्सपर्ट। पैसा है तो बिजनेस है। ओके, सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फार्मर मस्ट मेक अ प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो फार्मर के लिए कुछ भी नहीं। अब इसका एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्रोनॉमी मतलब एक एक जो आपका एग्रोनॉमिस्ट है, वो आपको रिकमेंड कर सकता है कौन सा बेस्ट पेस्टिसाइड है, इवन टू इफ इट्स एक्सपेंसिव। चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन इससे जो फार्मर है वो पैसा नहीं कमा पाएगा। फार्मर को पैसा मिलता है MSP सपोर्ट प्राइस से। तो अब एक एग्रोनॉमिस्ट को पता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये है, एंड अगर ये फर्टिलाइजर ही लगाएगा तो इससे तो पैसा बढ़ जाएगा, लागत ज़्यादा है, एंड आपके पास जो पैसा आ रहा है वो कम है। तो उसके हिसाब से भी एग्रोनॉमिस्ट वर्क करता है कि
इसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस इतना है, तो मुझे इस बजट के अंदर इस काम को खत्म करना है. Okay, so now we have economics. Agronomy is closely tied to agriculture economics. It involves making decisions that impacts economic viability of crop of farming operations. फार्मिंग ऑपरेशन कि किस टाइप का आपको पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना है, सो दैट यू आर मेकिंग, so you're not using much money and you're getting some profit. Agronomic consider factors such as input costs, crop prices, market demand and their recommendation. जैसे मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स रोल ऑफ एग्रोनॉमिस्ट. अब आपने इतनी देर से देखा एग्रोनॉमिक्स क्या क्या चीजें करते हैं. हम इनको फार्म स्ट्रेटेजिस्ट भी कह सकते हैं. ओके, ये क्रॉप के डॉक्टर भी हैं, ये फार्म स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं. इनका काम जो होता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन आपको लाना होता है एट द मिनिमम प्राइस बेसिकली. एंड क्रॉप कैसे ग्रो कर रही है, प्रोडक्शन कैसा है, बेस्ट प्रैक्टिसेस उनको सही करने के लिए सब सब काम एक एग्रोनॉमिस्ट करता है. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड इट आउट. एग्रोनॉमिस्ट इज अ साइंटिस्ट who is dealing with the study of problems for crop production, adopting and recommending practices for better crop field production and crop management to get the high yield and income. Okay, high yield and income इसको चाहिए होता है from the crop field and soil management के थ्रू. जो वैसे कि मैंने आपको बताया, मैक्सिमम प्रोडक्शन एट द मिनिमम कॉस्ट प्राइस ये काम करता है. एग्रोनॉमिस्ट एम in obtaining maximum production at the minimum cost by exploiting the knowledge of the basic and applied science for higher crop production. In broader sense, agronomist is concerned with the production of food and fiber to meet the daily needs of the growing population. इसको भी हम पहले देख चुके हैं कि हाउ दे आर मेकिंग थिंग्स डेली नीड के लिए, कि हम उस चीज को अचीव कर पाए. नाउ ही डेवलप्स efficient and economic field preparation method for sowing crops in different seasons. जैसे कि मैंने आपको बताया था उस हिल के एक्सप्लेन में कि अक्रॉस हमने क्यों उगाया, वर्टिकल हम क्यों नहीं गए एक हिल के ऊपर. ये भी एग्रोनॉमिक्स का काम है कि रीड करना सिचुएशन क्या है एंड उसके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट फील्ड को आप फील्ड को क्रिएट करते हैं. So he is involved to selection of suitable crop variety to suit the match varied season and soil. बहुत टाइम से आपको समझाता हुआ मैं आपको आ रहा हूँ, कौन सी क्रॉप कहाँ उगेगी, कौन सी वैरायटी कहाँ सूट करेगी सीजन के हिसाब से, ये भी वही डिसाइड करते हैं. एग्जाम्पल, रेड सॉइल के लिए ग्राउंड नट होता है, ब्लैक सॉइल के लिए कॉटन होता है, सैंडी सॉइल के लिए ट्यूबरस क्रॉप्स होती हैं, सेलाइन के लिए आपके पास जाएगा फिंगर मिलेट्स या रागी. इन खरीफ, if water is sufficient, go for the rice, and if water is not sufficient, then go for the maize or sorghum. क्या आपके पास है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हैं. ओके, नाउ creating the efficient plan for method for cultivation. कल्टीवेशन के लिए कौन सी चीज हमको करनी चाहिए. evolves efficient method for cultivation, whether broadcasting nursery, transplantation or developing extractor, provide a better crop establishment and maintain the required population. Now, different type of cultivation methods होते हैं. ब्रॉडकास्टिंग, कि भाई आपने ऐसे थ्रो करा एक फील्ड के ऊपर एंड क्रॉप्स एंड जो सीड्स हैं वो पहुंच गए टुवर्ड्स इन द फील्ड, ये है आपका ब्रॉडकास्टिंग मेथड. ट्रांसप्लांटेशन, जैसे कि आपने एक प्लांट ग्रो कर रहा है, इसमें से एक आपके पास ट्विग निकली हुई, ट्विग या लीफ या ब्रांच हम कहेंगे, उस ब्रांच को आपने यहाँ से स्लिट करा एंड उसको दूसरी जगह पे जाके ग्रो कर दिया.
तो दिस इज ट्रांसप्लांटिंग, या दूसरे से अपने दूसरे में ज्वाइन कर दिया इसके पार्ट में, वहां पे ट्रांसप्लांटिंग हुई। ग्राफ्टिंग, जिससे आपके रोज उगाए जाते हैं, आपने एक ब्रांच को कट करा, वहां से आपको जाके उसको लगा दिया। सो डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं अबाउट हाउ यू आर कल्टिवेटिंग योर क्रॉप। ओके, नाउ इनका काम ये भी होता है क्रिएटिंग द फर्टिलाइजर प्लांट। प्लांट को आपको क्या चाहिए, लाइक जो लॉन्ग ड्यूरेशन की क्रॉप्स होती हैं, जैसे हम राइस का एग्जांपल लेते हैं, वो एक हैवी ईटर होती है। दे नीड अ बिग मील, लाइक 150 60 kg ऑफ NPK पर हेक्टेयर उनको चाहिए होता है। ये एक आपका फर्टिलाइजर है जो उन्हें चाहिए होता है विद दिस रेशियो। एंड जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होती है, उसको जैसे कि आपको NPK चाहिए होगा 150 120 50 50। सॉरी, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। लाइक P इज फॉर फॉस्फोरस, K इज फॉर पोटेशियम एंड N इज फॉर नाइट्रोजन। तो ये खाना होता है एक आपके प्लांट का। अगर राइस है तो राइस लेगा आपका, ये आपका एक्सप्लेन भी कर रखा है हमने यहाँ पे, तो मैं आपको रीड आउट करता हूँ। ही हैज टू आइडेंटिफाई various type of nutrients crop grown by the required by the crop during the time and the method of application। like long duration जो राइस है 150 60 60 kg NPK पर हेक्टेयर, यहाँ पे पर हेक्टेयर भी आएगा। एंड शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप जो होती है वो 120 50 50 के रेशियो में आती है पर केजी NPK पर हेक्टेयर। सो ये जो आपके होता है ये 3 स्प्लिट्स में होता है। काइंड ऑफ आप मान के चलिए प्लांट के लिए ये हुआ 3 डोज में अगर गया, तो इट्स लाइक ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर फॉर द प्लांट, सो दैट बिल्कुल वेस्ट ना हो। आप एक बार में पूरा नहीं डालते, आप इसको 3 स्प्लिट में डालते हैं। सो ये काम भी एक एग्रोनॉमिस्ट का होता है। अब एग्रोनॉमिस्ट का काम, जैसे यहाँ पे लिखा है बेटर वीड मैनेजमेंट। वीड मैनेजमेंट, जो वीड होते हैं आप उनको समझ सकते हैं चोर की तरह। इनका काम क्या होता है, ये उग जाएंगे, ये पानी भी ले लेंगे, आपके जिसको आपकी क्रॉप ग्रो करिए वहां से न्यूट्रिएंट भी ले लेंगे। तो अब एग्रोनॉमिस्ट डिसाइड करता है कि हम कैसे रोकें। इसके लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच यूज करी जाती है, या तो मैकेनिकल यूज करा जाए। मैकेनिकल आपका हैंड हो होता है, हैंड हो, खुरपी हिंदी में हम कहेंगे उसे, या किसी मशीन के थ्रू हम निकाल सकते हैं, या हमारे पास होता है केमिकल। केमिकल आपका हर्बिसाइड होता है, लाइक लाइक 2,4-D इसका यूज करा जाता है। एंड कल्चरल इसका एक वे होता है कि एक प्लांट होता है क्रॉप पी करके हम उसे उगा देते हैं। उसका काम ये होता है जल्दी से वो पूरा कवर कर लेता है, एंड जो वीड होती है उनको नेचुरली निकाल लेता है। ठीक है, सो एग्रोनॉमिस्ट मस्ट सेलेक्ट अ बेटर वीड मैनेजमेंट प्रैक्टिस आइदर थ्रू मैकेनिकल और फिजिकल। ह्यूमन वर्क किससे करा जाता है, खुरपी से करा जाता है और हैंड हो। केमिकल जो आपको हर्बिसाइड या वीडिसाइड मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल 2,4-D। और कल्चरल, बाय हैविंग वाइड स्पेस इट इंक्रीज वीड ग्रोथ by using interspace crops। अपने वाइड स्पेसेस क्रिएट करें जिससे जो फीड है वो दूसरे साइड पे ग्रो कर रही है। काउपी, जिसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, उस तरीके से वीड आर कंट्रोल बाय इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट मेथड ऑल्सो। वीड इंटीग्रेटेड मेथड जिसमें काउपी को आप उगाते हैं, ये रो एक सेपरेट बना देती है कि भाई जो तुम ग्रो होगे तुम उधर होगे, इधर नहीं होगे। और जब एक साइड पे वो ग्रो होगा तो वहां पे आप एक बार में से क्लीन आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन या विद द हेल्प ऑफ केमिकल, आपका मैकेनिकल फिजिकल किसी भी यूज के साथ। नाउ शेड्यूलिंग इरिगेशन, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर इरिगेशन मेथड। तो इसे हम समझ सकते हैं शेड्यूलिंग इरिगेशन से, टू डिसाइड व्हेन, वेयर एंड हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी। सो इसका एक एग्जांपल देते हैं। लाइक जो फार्मर है वो फ्लड इरिगेशन की तरफ जाता है। फ्लड इरिगेशन की एक आपका ये फील्ड है,
आपने ट्यूबवेल लगाया, यहाँ से एक पाइप आया, और वो उस पाइप ने पूरे में पानी डालना शुरू कर दिया। तो धीमे 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 करके ये पूरा का पूरा कवर अप हो जाएगा। ये है फ्लड इरिगेशन। इससे वाटर का वेस्टेज भी होता है। क्या पता आपने यहाँ पे जो एक मेड़ बनाई थी वो कट गई, लाइक आपने एक डिवीजन जो बनाया था दो फील्ड्स के बीच में, वो कट गया एंड वाटर फ्लो आउट हो गया, पानी बर्बाद, वाटर लॉगिंग हो गई अगर पानी ज़्यादा देर चल गया। तो इसीलिए यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं ड्रिप इरिगेशन को। आई एम कमिंग विद द सेम एग्जांपल सो दैट यू कैन सबको थोड़ा ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन हो पाए। ड्रिप इरिगेशन धीमे धीमे टाइम पे छोटे छोटे लॉट्स में पानी को भेजता रहता है, जिससे पानी खराब नहीं होता, जिससे सॉइल आपकी पोरस ज़्यादा नहीं होगी एंड जिससे आपके पास वाटर लॉगिंग का इशू नहीं आएगा। एंड एग्रोनॉमिक्स का काम ये भी होता है कि क्रिटिकल टाइम आपको बता दे कि इस टाइम पे आपको इरिगेशन करनी है, ताकि जैसे आप इरिगेट करते हैं, आप पानी देते हैं, तो एक फ्लावरिंग स्टेज भी आती है। लाइक पहले फ्लावर क्रिएट होता है, एक प्लांट होता है, वो ग्रो करता है एक सीड के थ्रू। जब वो जाता है यहाँ पे उसकी विग्स ट्विग्स निकलती हैं, ट्विग्स में जाके यहाँ पे एक छोटा सा बल्ब उगता है एंड दैट बल्ब देन कवर इनटू दैट गेट्स इनटू फ्लावर। तो ये सारा काम भी एक एग्रोनॉमिस्ट का ही होता है, देखने का कि क्रॉप को अब क्या चाहिए। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर इरिगेशन मेथड, irrigating schedule, irrigation timing, and the quality based on the crop to be irrigated, whether to irrigate continuously or stop in between, and how much water to be supplied are computed by the agronomy science so as to achieve the maximum water use efficiency. सो यहाँ पे हम पानी को भी बचा रहे हैं, हम अपनी क्रॉप को भी कैसे ग्रो करना है उसके बारे में भी देख रहे हैं, एंड किस टाइम पे हमें कितना पानी चाहिए हम उस चीज को भी देख रहे हैं। ओके, नाउ अगर हम नेक्स्ट देखें द क्रॉप रोटेशन, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है एग्रोनॉमी का। कौन से सीजन में कौन सी क्रॉप हमें उगानी चाहिए। तो लाइक हमने एक प्लान बनाया जो सेवरल ईयर्स के लिए चलेगा, लाइक हाउ वी आर रोटेटिंग द क्रॉप्स। तो हम साउथ इंडिया की तरफ नीचे तरफ चलते हैं। तो वहां पे हमने सबसे पहले उगाया वेट सीजन में राइस, फिर हमने राइस अगेन उगाया अपने इरिगेशन सीजन में। अब जब वहां पे समर आएगा, समर में वहां पे पानी नहीं है, तो उस टाइम पे हम उगाएंगे पल्स। पल्स जैसे कि ब्लैक ग्राम, मैंने आपको एग्जांपल दिया था। पल्स का काम क्या था, राइस ने खींचा न्यूट्रिशन नाइट्रोजन एंड पल्स ने क्या दिया, नाइट्रोजन। तो ये एक सिस्टम है, ये क्रॉप रोटेशन का प्लान है। इट इज ब्यूटिफुली क्राफ्टेड बाय द एग्रोनॉमिस्ट with the help of all the science and all the technologies that he is using. Okay, so crop planting, that is suitable crop sequence are developed by agronomists. What type of crop, cropping pattern, cropping sequence, example rice pulse, rice pulse, ये साउथ इंडिया का है, वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, वेट सीजन ज़्यादा होता है क्योंकि कोस्टल रीजन आ जाते हैं, दैट इज वाई सब जगह का अलग अलग होता है एक क्रॉपिंग पैटर्न। एग्रोनॉमिक्स का और एक काम क्या होता है, परफेक्ट हार्वेस्ट का टाइम क्या होता है। पिकिंग अप एग्जैक्ट राइट मोमेंट ऑफ हार्वेस्ट इज क्रिटिकल टू प्रिवेंट लॉसेस। कि कब आपकी खेती पक के एकदम तैयार हो चुकी है, नाउ इसके बाद ये पकेगी नहीं, ये डिटोरिएट होगी। लाइक इफ यू हार्वेस्ट राइस टू अर्ली टू गेन लाइक इट्स नॉट फुल। जैसे कि अगर आप राइस को हार्वेस्ट जल्दी कर देते, ग्रेन पूरा नहीं होता है, एंड अगर आप लेट कर देते हैं तो जो ग्रेन है वो शैटर हो जाता है, उसको फॉल ऑफ हो जाता है, छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको 10% ऑफ लॉस देखने को मिलता है।
तो जो एग्रोनॉमिक्स के लिए हम कहते हैं, एक टर्म होती है गोल्डीलॉक्स विंडो। गोल्डीलॉक विंडो उसे कहते हैं जिसमें आपको बेस्ट आपकी क्रॉप मिल रही है। ओके, agronomists are also develop the method of harvesting, time for harvesting, etc. Appropriate time for harvest essential to prevent yield losses. Okay. अब एग्रोनॉमिक्स के पास एक और होता है, वो एक फार्म मैनेजर भी होता है। लाइक हियर्स द ब्रेन फॉर ऑल द ऑपरेशंस। क्रॉप किस ईयर में कौन सी होगी, लैंड कितनी चाहिए होती है, हम मंडी में कितने का सेल आउट करेंगे। तो ये सब काम भी एग्रोनॉमिस्ट का होता है, उसे पता होता है सब चीज़ें। लाइक आई विल से लाइक ऑल द फैक्टर्स, आपके मेट्रोलॉजी, आपकी आपका सॉइल साइंस, इन सब चीज़ों को जोड़ते हुए हम इस लास्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं कि एग्रोनॉमिस्ट एक ब्रेन भी है ऑपरेशंस के लिए। सो एग्रोनॉमिस्ट is responsible for every decision made in the farm management, like what type of crop is to be produced, how much area is allotted for the each crop, how and when to market, how and when to take other management activities. All these decisions should be taken at appropriate time to efficiently use resources available. Okay, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ओके, सो व्हाट इज इट, इसका एक इंट्रोडक्शन एक हम लेते हैं। जो ड्राई या टफ प्लेसेस होती हैं जिनको हम कहते हैं एरिड या सेमी एरिड, जहाँ वाटर होता है लिमिटेड, तो इसकी वजह से एंड जो रेनफॉल है वो एराटिक होता है। एराटिक एराटिक मीन्स अनप्रिडिक्टेबल। ओके, इसका अगर हम एक एग्जांपल है, जैसे मैंने आपको बताया था एक्रोक्लाइमेटिक जोन्स में माथावाड़ा या विभद्रा जो आपका महाराष्ट्र का रीजन है, रायलसीमा हम आंध्र प्रदेश का ले सकते हैं, या लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान भी हम देख सकते हैं। इनका मेन चैलेंज क्या होता है, वाटर स्कैरसिटी। वाटर स्कैरसिटी किस वजह से, नॉट इनफ रेन या इवेपोरेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है, द सन इज टू हॉट एंड वाटर ड्राइज अप वेरी फास्ट। या फिर हम कह सकते हैं कि इनके पास लो सॉइल फर्टिलिटी भी है, सॉइल इज ऑफन वेरी पुअर। ओके, so now we are going to see dryland agriculture refers to farming practices in the region characterized by limited water availability, often with the erratic and unpredictable precipitation। रेन कैसे हो रही है हमें नहीं मालूम, erratic conditions हैं। These area commonly known as arid or semi-arid region face challenges such as water scarcity, high evaporation rates, low soil fertility. Dryland agriculture requires specialized techniques, strategies to maximum crop production and ensure sustainable land use। वही मैं एक एग्जांपल फिर से रिपीट करना चाहूँगा, ड्रिप इरिगेशन। पानी जहाँ कम है, धीमे धीमे वहाँ पानी पहुँचाया जाता है फ्रॉम द ट्यूब्स एंड द क्रॉप कैन ग्रो। यहाँ पे मैं शुगर केन को हटा के किसी और चीज़ को भी उगा सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर जो उस क्रॉप को चाहिए। ठीक है, ये एक टेक्निक है। सो इट्स लाइक समथिंग आई नो वेरी वेल। नाउ की एस्पेक्ट्स ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। नाउ की एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, क्रॉप्स एंड वैरायटी। ठीक है, अब क्रॉप्स एंड वैरायटी से हम ये समझते हैं कि हमें चाहिए ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप्स। तो ये कौन होते हैं, ये वो सुपर हीरो प्लांट्स होते हैं जिनको लो वाटर चाहिए होता है, इनको सुपर हीरो ही कहेंगे क्योंकि नॉर्मल प्लांट यहाँ नहीं हो सकते, तो दे आर कंसीडर्ड एज सुपर हीरोज। ओके, तो जिसका हम एग्जांपल देखते हैं, दैट्स वाई मिलेट्स। मिलेट्स जो होते हैं जिनमें आपका ज्वार आता है, बाजरा आता है, रागी आता है, और पल्सेस जिनमें आपका चिकपीस, चना, या पिजन पी। पिजन पी आपका कहते हैं, हम हिंदी में कहेंगे अरहर की दाल, ये यहाँ पे उगाया जाता है, या सोरगम। ये इनको कहा जाता है किंग या सुपर हीरोज, ये ड्राईलैंड फार्मिंग के सुपर हीरोज है। या फिर हम इसमें एक और ट्रिक लगा सकते हैं,
शॉर्ट टर्म जो वेराइटीज हमारी होती है ये बहुत ही बेटर होती है, लाइक इट इज लाइक अ वेरी क्लेवर टिप. These varieties can grow, flower and produce crop before the soil runs out of water. जैसे कि अगर हमने एक्सपेक्ट करा कि इस सीजन में यहाँ पे बारिश होने वाली है, तो हमने इसको लगा दिया जिससे पहले सॉइल ड्राई आउट होगी, उतने में ये ब्लूम भी हो जाएंगे, ये ग्रो भी हो जाएंगे एंड अपना प्रोड्यूस भी दे देंगे. ठीक है. सो क्रॉप वेराइटी फोकसेस ऑन ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप, selection crops that are naturally adaptive to low moisture conditions such as millets, sorghum, chickpeas, and certain variety of wheats and barley. मैंने आपको बताया था short season variety, opting for crop for shorter growing season to make the most of available moisture and reduce exposure to dry periods. जल्दी जल्दी ग्रो हो जाती हैं एंड सॉइल खत्म होने से पहले उनका काम पूरा हो जाता है. नाउ सॉइल मैनेज कंजर्वेशन टिलेज. कंजर्वेशन टिलेज को हम ये मानते हैं कि प्लोइंग लेस करते हैं इसमें. प्लोइंग लेस कैसे होता है? एक जैसे कि ये फील्ड टिलेज से हमने यहाँ पे ऐसे करके डिविजन्स बना दिए और ये डिविजन्स वी शेप में होते हैं. आपको ये याद रखना होगा. काइंड ऑफ बॉर्डर्स की तरह काम करते हैं. यहाँ पे डिविजन्स है. अब हमने एक साइड से डाला है इसमें पानी, तो जो पानी यहाँ पे जाएगा, क्योंकि डिविजन्स बने हुए तो अपने आप ही इन डिविजन्स को पानी फिल आउट कर लेगा. लाइक एवरी टाइम व्हेन यू प्लो you expose moist soil in the hot air, it dries out. That means less blowing and it saves more water. Okay. ये आपको थोड़ा सा जो टिलेज हम आगे पढ़ेंगे, लाइक इसी का सेकंड पार्ट है, उसमें आपको ज़्यादा बेटर, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. कंजर्वेशन टिलेज, minimizing soil disturbance to reduce evaporation and improve the water infiltration. हिलाना डुलाना कम है चीज़ों को, उससे इवेपोरेशन भी रिड्यूस होगा, वाटर का इन्फिल्ट्रेशन भी होगा. ज़्यादा हमको मतलब कि छेड़छाड़ नहीं करनी है विद आवर फील्ड. ओके. Mulching, covering of soil with organic matter like straw, leaves of the suppressed weed to retain moisture and regulate soil temperature. मुल्चिंग आपका क्या हुआ? मुल्चिंग में आपने ऑर्गेनिक मैटर जैसे स्ट्रॉज हुए या वीड्स वगैरह वो आपने डाल दिए, ऊपर से कवर कर दिए. कवर करने का उनका काम क्या होता है कि जो आपका क्योंकि ये एक हॉट रीजन है, इवेपोरेशन जल्दी नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तो वो उसको वाटर रिटेंशन या आपको मॉइस्चर रिटेंशन करते हैं. कवर क्रॉपिंग. नाउ कवर क्रॉपिंग आप नॉर्मली अपने बायोटिक जो आपके सॉरी बोटैनिक जो आपके कहते हैं, बोटैनिक कंडीशंस जो बनाई जाती हैं, काइंड ऑफ एक शेड की तरह. मैं इसको को बेटर एक्सप्लेन कर पाऊँ, एक शेड की तरह बनाई जाती है. जैसे कि एक ये लैंड है, वी हैव, सॉरी, जस्ट अ मोमेंट, या जैसे कि एक ये लैंड है, उस लैंड पे हमने एक शेड बना दिया दैट इज कवरिंग द एरिया. तो हमने सम अमाउंट ऑफ आपका जो सनलाइट है हमने उसे रोक दिया. सो दैट इज व्हाट कवर क्रॉपिंग इज लाइक. प्लांटिंग एडिशनल क्रॉप बिटवीन द मेन क्रॉप टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, सप्रेस वीड एंड टू रिटेन मॉइस्चर. इसका एक है आपने कवर कर दिया, या फिर एक है कि जैसे कि आपका ये है, आपकी छोटी क्रॉप यहाँ पे उग रही है, या उसके बगल में आपने बड़े बड़े ट्रीज को लगा दिया. अब उन ट्रीज का काम क्या है कि उन्होंने बड़ा एक शेड या कवर दे दिया. ये एक नेचुरल टेक्निक है जिसकी वजह से यहाँ पे जो धूप पड़ रही है जिसकी वजह से ये ग्रो नहीं हो सकता था, लेकिन अब ये ग्रो हो सकता है. इसके दो मेथड है, ये है नेचुरल और ये है आर्टिफिशियल या मैन मेड. ओके. कवर क्रॉपिंग का. नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स वाटर मैनेजमेंट. So water management is like you must harvest during the
मतलब एफिशिएंट रेन वाटर यूज क्या होता है कि आपको हार्वेस्ट करना चाहिए जब बारिश हो रही है, ठीक है। जैसे कि फार्म पॉन्ड होते हैं, खेत तालाब जो हम बनाते हैं, वो हम इसलिए बनाते थे ताकि जो पानी बहता हुआ जा रहा है उसे हम एक जगह स्टोर कर लें एंड वहां से हम यूज कर सकें। या कॉन्टूर फ्लोइंग आपकी होती है, उसे हम करते हैं कॉन्टूर फ्लोइंग। जैसे कि आपने डिफरेंट डिफरेंट ऐसे करके बना दिया, अब यहाँ से जब पानी जाएगा तो पानी यहाँ पे रिटेन होगा थोड़ी देर, फिर पानी यहाँ जाएगा, जब ये पूरा सरफेस भर जाएगा उसके बाद पानी फ्लो होकर नीचे जाएगा, जब ये पूरा सरफेस भर जाएगा तब पानी फ्लो होकर नीचे जाएगा। तो दैट इज हाउ वाटर जल्दी से नहीं बहता हुआ जाए। ये डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, इनको आपको बेटर समझाया जाएगा आगे भी, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट, एफिशिएंट यूज ऑफ रेनफॉल, capturing and storing rainwater through techniques like contour flowing, terracing, and rainwater harvesting. कॉन्टूर फ्लोइंग मैंने आपको बताया, टेरेस, आप टेरेस फार्मिंग आप जानते हैं जो आपके हिल्स के ऊपर करी जाती है, टेरेस फार्मिंग दैट इज द, एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसकी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है, जिसको मैंने आपको समझाया था। खेत तालाब वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आपने कहीं पे भी देखते हुए लैंड, मतलब एक खेत के पास दूर सा एक तालाब है तो उस तालाब में पानी भरा रहता है, वो पानी नीचे प्रॉपर आप सोचते हैं पानी भरा हुआ है, बट वो पानी नीचे भी जा रहा होता है आपके वाटर टेबल। सो इट इज इनहेंसिंग द आपका ग्राउंड वाटर लेवल, ओके। सप्लीमेंटल इरिगेशन, यूजिंग minimal irrigation only when absolutely necessary, such as during critical growth stages। पानी का तब यूज करना जब ग्रोथ स्टेजेस होती है। ये किसका काम है? एग्रोनॉमिस्ट का। ये आपको पहले ही बताया जा चुका है, एग्रोनॉमिस्ट आपको बताता है किस सीजन में आपको किस टाइम पे कितना पानी देना है, ओके। अगर मैं आपको एक चीज समझाऊं, अगर आप थोड़ा समझना चाहे इस कॉन्टूर फ्लोइंग को एक शॉर्ट टर्म में, तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि इसमें 3 ये लेयर्स की तरह बने हुए हैं, इनको आप छोटे छोटे मिनी डैम्स भी कंसीडर कर सकते हैं। दीज आर लाइक स्मॉल डैम्स जो वाटर को रश होने से बाहर बचाते हैं, ओके। ड्रॉट प्रिपेयर्डनेस, developing continuous plan and implementing strategies to cope with the period of severe drought। सूखा जब आने वाला होता है, ये आपको कौन बताएगा? मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट किसको बताएगा? एग्रोनॉमिस्ट को। एग्रोनॉमिस्ट किसको बताएगा? वो आपको हेल्प करेगा कि अब सूखा आने वाला है तो आपको वाटर टेबल को भी मेंटेन करना है। टेरिस फार्मिंग से आपने धीमे धीमे पानी निकाला, जो खेत खेत तालाब मैंने आपको बताया था, फार्म पॉन्ड्स, उनमें पानी भरा गया तो वहां से भी यूज करा जा सकता है। दिस इज ऑल्सो ड्रॉट प्रिपेयर्डनेस, ओके। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट। अब नॉर्मली यहाँ पे 3 कैटेगरीज होती हैं। डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। एक है आपकी ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग एंड रेन फीड फार्मिंग। सो अब मैं आपको इनको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। ड्राई फार्मिंग सबसे टफेस्ट होती है। रेनफॉल जहाँ 750 मिलीमीटर पर ईयर से कम होता है उसे हम इस जोन में डालते हैं। रीजन जो आपका होता है हम उसे मानते हैं ये एरिड रीजन। ग्रोइंग सीजन बहुत छोटा माना जाता है, 75 डेज से कम। और अगर लॉन्ग स्पेल ड्राई हो गए, मतलब लॉन्ग स्पेल आपके लंबे हुए, लॉन्ग स्पेल ड्राई, लॉन्ग स्पेल लंबे हुए, तो यहाँ पे क्रॉप फेलियर बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर मैं इंडिया से जोड़ के देखूँ, जिस कंट्री में हम रहते हैं, तो वो है वेस्टर्न राजस्थान, आपका थार डेजर्ट रीजन, ओके। अब आपको थोड़ा एक्सप्लेन होने में करने में थोड़ा सा मुझे भी आसानी होगी। Its cultivation for the crop in the region of the annual rainfall is less than 750 millimeters। मैंने आपको बताया था। Crop failure is most common due to prolonged dry spells during the crop period। बारिश नहीं होती है, prolonged dry spell हो गया and crop वहाँ पे fail हो गई। These are arid region in the growing season period of adequate soil moisture with less than 75 days। 75 डेज का आपके पास एक स्पेल होता है, इसमें आप ग्रो कर सकते हैं।
या 75 से भी कम ही मान के चलिए। इट्स पहले 75 होता था, नाउ इट्स लाइक लेस देन 75, अराउंड 60, इट्स अराउंड। ओके। मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस आर नेसेसरी फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। मॉइस्चर कन्वर्सेशन कैसे कंजर्वेशन कैसे होगा आपका? फिर मैं आपके पास घूमता फिरता वहीं जाऊंगा, एक ड्रिप इरिगेशन के पास। सो दैट इज समथिंग जो आपको हेल्प कर सकता है। बाकी और भी टेक्निक्स हैं, कवर्ड फार्मिंग भी होती है, बट सबसे मेन आपका ड्रिप के पास जाऊंगा, दैट इज इजी। पानी का ट्यूब हर किसी ने अपने घर में देखा है, उसमें जब छेद होता है तो एक छोट जब आप पानी चलाते हैं तो ऐसे करके उड़ता हुआ जो जाता है ना, एक छोटा सा पानी या पानी की धार, वही है। दैट इज वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ ड्रिप इरिगेशन। उसका फ्लो ऐसे तेज भी हो सकता है या छोटे छोटे ड्रॉप्स में भी हो सकता है। ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट प्रेशर यू आर अप्लाइंग। ओके। emphasis on soil and water conservation, sustainable crop yields, and the limited use of fertilizer according to the soil moisture availability। लिमिटेड फर्टिलाइजर यूज करे जाते हैं, जो क्रॉप उसको विथस्टैंड कर सकती है, उनको उगाया जाएगा। कैक्टस सबसे प्राइम एग्जाम्पल आप देखते होंगे, कैक्टस हमेशा सबसे ज्यादा आपको वही दिखता है, क्योंकि वो सॉइल मॉइस्चर अवेलेबिलिटी के हिसाब से उगते हैं, एंड दे आर द टफेस्ट वन जो उग सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स ड्राई लैंड फार्मिंग। ड्राई लैंड फार्मिंग, अब इसको इन शॉर्ट में आपको बताते हैं। अगर 750 mm से नीचे पानी हुआ तो वो आपकी ड्राई फार्मिंग हो गई। अब ड्राई लैंड फार्मिंग में जिसमें 750 mm से आपके पास ज़्यादा पानी हुआ, ये आ गया। वो एरिड रीजन था तो ये हो गया सेमी एरिड रीजन। ग्रोइंग सीजन वहाँ 75 से नीचे था तो इनका 75 से 120 दिन हो गया। क्रॉप फेलियर वहाँ ज़्यादा था तो यहाँ क्रॉप फेलियर कम हो गया। यहाँ ड्राई स्पेल आपका लंबा हो गया, ड्राई स्पेल आपका छोटा हो गया। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल अगर आप देखें तो सेंट्रल और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र, कर्नाटका, एमपी, ये वो रीजन है। उसका रीजन था राजस्थान। तो अब आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इट्स इट इज कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन रीजन with annual rainfall more than 750 mm. In spite of prolonged dry spell, crop failure is relatively less frequent. These are semi-arid tract and the growing period is between 75 to 120 days. जैसे मैंने आपको बताया था, moisture conservation practices are necessary for crop production. However, adequate drainage is required, especially for the vertisols. Mainly emphasize on soil and water conservation, sustainable crop yield, and limited fertilizer use according to soil moisture availability। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एडुकेट ड्रेनेज आपको होना चाहिए। जो मेन एम्फेसाइज आपका होता है ये सॉइल या वाटर कंजर्वेशन पे होता है। सुटेबल क्रॉप कौन सी होनी चाहिए, फर्टिलाइजर को कम यूज करिए, एंड सॉइल के मॉइस्चर के अकॉर्डिंग अपने क्रॉप्स को ग्रो करिए। अब हम चलते हैं रेन फीड फार्मिंग। अब रेन फीड फार्मिंग थोड़ा सा डिफरेंट है आपका। रेन फीड फार्मिंग आपका होता है वेट कंडीशंस। वेट कंडीशन जहाँ पे आपके पास 1150 लाइक 1150 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो रही है। ये बिल्कुल ह्यूमिड रीजन है। ग्रोइंग सीजन यहाँ पे लॉन्ग होता है, 120 दिन से आपका मिलेगा। क्रॉप जो है, क्रॉप आर नॉट स्ट्रेस फॉर मॉइस्चर। यहाँ पे मॉइस्चर की दिक्कत नहीं है। ये ड्राई फार्मिंग एरिया नहीं है। लाइक आप इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, केरला, वेस्ट बंगाल, कोस्टल उड़ीसा। यहाँ पे दिक्कत ये नहीं कि आपके पास पानी नहीं है, यहाँ पे दिक्कत ये है कि भाई पानी बहुत ज़्यादा है। लाइक यू आर हैविंग अ लॉट एंड लॉट ऑफ वाटर ओवर हियर। ओके। सो इट इज द क्रॉप प्रोडक्शन इन द रीजन ऑफ द एनुअल रेनफॉल फॉर मोर देन 1150 millimeters. The crop are not subjected to the moisture stress during the cropping period, but these are humid region for the growing period for more than 120 days. Emphasize emphasis on the disposal of excess water। यहाँ पे दिक्कत है excess water की। Maximum crop yield, high level of input and controlled water erosions। यहाँ पे क्रॉप यील्ड मैक्सिमम आती है, इनपुट लेवल पे मैक्सिमम होते हैं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत है
Water erosion. Erosion like removal of the topsoil because of the water. Erosion डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से होता है. वाटर हुआ, एयर हुआ, these are the main ones जिनको हम ज़्यादातर देखेंगे. Okay. Now, UNESCO for Asia and Pacific distinguished dryland agriculture mainly into two categories, that is dryland and rainfed farming. Okay, the word arid and semi-arid must be understood differentially for dry farming. Arid में क्या था? 750 mm से नीचे. Semi-arid है 750 mm से ज़्यादा over the air. Okay, all the dryland farming are located in the arid and semi-arid region only. ये वही इस बात को कहता है. ड्राईलैंड फार्मिंग अगर एरिया है तो वो एरिड या सेमी एरिड रीजन के अंदर आएगा. बट नॉट ऑल द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन कम्स अंडर ड्राईलैंड फार्मिंग एरिया. कुछ जगहों पे आपके पास पानी नहीं होता है लेकिन ग्राउंड वाटर लेवल क्या पता ज़्यादा है. तो ये कैटेगरीज थोड़ी सी एक डिफ्रेंशिएट कर जाती है ऑन द ग्लोबल लेवल. ठीक है. When irrigation facilities are available, irrigated farming is practiced intensively in arid and semi-arid region also. जैसे मैंने आपको बताया था अभी ऊपर, अगर पानी है, आप पानी कैनाल के थ्रू ले आए वहाँ पे सेमी एरिड रीजन में, राजस्थान में भी कैनाल जाती है, तो आप वहाँ पे कर रहे हैं ज़्यादा इरिगेशन, तो वो सेमी एरिड और एरिड रीजन जो है अब वो इरिगेशन के लिए भी काम में आ गया. तो ये थोड़ा सा एक कंफ्यूज नहीं होने वाली चीज़ है. आप उस चीज़ को आप फिजिकल कंडीशन आप बोलते हो कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट ड्यू टू टेक्नोलॉजी आपने उसे प्रैक्टिकली पॉसिबल कर लिया. इंदिरा गांधी कैनाल का काम क्या था? इंदिरा गांधी कैनाल आपके पास क्यों गई? इंदिरा गांधी कैनाल ने आपको पानी पहुंचाया डेजर्ट के अंदर. राजस्थान डेजर्ट के अंदर इंदिरा गांधी कैनाल गई थी पानी लेके, तो उसकी वजह से फार्मिंग हुई, इरिगेटेड फार्मिंग हुई, ड्राई फार्मिंग नहीं हुई वहां पे. और वही अगर एरिड और ट्रॉपिकल के अगर मैं देखूं, तो जैसे कोल्ड रीजन आपका लद्दाख का हो गया, कोल्ड है, हॉट एंड ड्राई प्लेसेस वहां पे भी है, लेकिन वहां पे आप नहीं चीजों को उगा पाते. Similarly, the two words arid, semi-arid, and tropical temperate must be understood correctly. Arid or semi-arid refers to moisture regime, whereas tropical or temperate refers to thermal temperature regime of an area. यहाँ पे बात हो रही है सेमी एरिड और एरिड में मॉइस्चर की. ट्रॉपिकल जो आपका होता है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट, वहां पे जाता है थर्मल मॉइस्चर, जो सॉइल के अंदर, थर्मल जो आपका एक्सटर्नल, जो आपका एक्सटर्नली आपको इफेक्ट कर रहा है एरिया के ऊपर. ओके. सो ड्राईलैंड फार्मिंग इन इंडिया, इसको हम देखते हैं. अबाउट 70% जो हमारे रूरल पॉपुलेशन जो रहती है वो ड्राई फार्मिंग एरिया में रहती है, जिनका लाइवलीहुड आप मान के चलिए सक्सेस और फेलियर होता है रेन के ऊपर. लगान का मैच आप याद कर सकते हैं, वो भी इसी ड्राई फार्मिंग एरिया में बारिश पे ही डिपेंडेंसी थी. सो इसी को हम देखते हैं आगे. अबाउट 70% ऑफ रूरल पॉपुलेशन lives in dryland farming and their livelihood depends on the success or failure of crop. Much of the increase in food production in the recent past is estimated to be mainly due to irrigated areas. Dryland farming in India also refer to agricultural practice in the region where water availability is limited, particularly during the dry seasons. पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, कैनल्स भी कहीं पे हैं कहीं पे नहीं है, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ड्राईलैंड सीजन्स के हिसाब से हम उसको एडजस्ट करते हैं. नाउ वी विल सी फैक्टर अफेक्टिंग ड्राईलैंड एरिया, ड्राईलैंड फार्मिंग. नेक्स्ट टॉपिक यही होना चाहिए. सॉरी, one point is remaining over here. Many parts of India, especially in the central and western region, experience arid temperature climate, making dryland farming technique essential for sustainable agriculture. अब मैंने इसका आपको एग्जाम्पल दिया था कि
आपका सेंट्रल एंड सदर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड एमपी, ये आपके ड्राईलैंड फार्मिंग जोन के अंदर आते हैं, एरिड या सेमी एरिड रीजन। सेमी एरिड में आएंगे, एरिड में नहीं आते। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी फैक्टर अफेक्टिंग ड्राईलैंड फार्मिंग। सबसे पहले हम क्या लाएंगे, सबसे पहला तो आ जाएगा क्लाइमेट। क्लाइमेट से ही ये कहानी शुरू होती है। नंबर वन फैक्टर, रेनफॉल पे डिपेंडेंसी। कैसे आपका रेनफॉल, वाटर सेकंड पार्ट अगर मैं देखूं, देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ क्लाइमेट, लेकिन अब नीचे देखते हैं आप वाटर अवेलेबिलिटी भी है। अब वाटर अवेलेबिलिटी भी क्लाइमेट से ही डिपेंडेंट होती है। जब बारिश होगी तो ही पानी नीचे होगा, कितना रेन है उसी हिसाब से आपका ग्राउंड वाटर भी होता है। ओके। तो आप देखेंगे जो ये अगली 10 पॉइंट जो आप देखेंगे उसमें आप ये देखेंगे कैसे चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, हाउ ब्यूटीफुली थिंग्स आर बीइंग इंटरकनेक्टेड, एंड कैसे किसी चीज को हम खराब से और खराब देख सकते हैं। सो नाउ क्लाइमेट, the primary factor influencing dryland farming in the climate. Arid and semi-arid region characterized by low and erratic precipitation present significant challenge for agriculture. Temperature extreme, high evaporation rates, timing and distribution of rainfall impact the crop growth and water availability. जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेमी एरिड रीजन आपका क्रिएट हो गया क्योंकि बारिश नहीं हुई, उसकी वजह से लो प्रेसिपिटेशन है, पानी नहीं है, चैलेंजेस है आपके एग्रीकल्चर के लिए। टेम्परेचर एक्सट्रीम हो जाता है, अगर बारिश नहीं हो रही है तो वो टेम्परेचर सन आपके मतलब वहाँ पे ज़्यादा है, यू नॉट गेटिंग क्लाउड्स ओवर देयर, एक्सट्रीम टेम्परेचर है, इवेपोरेशन रेट अपने आप ज़्यादा हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल अगर नहीं हुई तो क्रॉप भी नहीं ग्रो करेगी, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं। एंड उसी के साथ हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं जो है वाटर अवेलेबिलिटी। बारिश नहीं हुई, बारिश नहीं हुई तो दूसरा तरीका क्या था, हम कैनाल लेकर आए, कुछ जगहों पे कैनाल भी नहीं पहुंच सकती। तो नाउ द लिमिटेड वाटर अवेलेबिलिटी फॉर बोथ फ्रॉम रेनफॉल एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। अगर बारिश नहीं है, जिस इलाके में बारिश कम होती है उस इलाके में ग्राउंड वाटर लेवल अपने आप नीचे होगा। हम तो वैसे ही मैनमेड कैनाल लेकर आए थे वहां पे। सो इट इज द क्रिटिकल फैक्टर इन ड्राईलैंड फार्मिंग। फार्मर मस्ट केयरफुली मैनेज एंड कंजर्व वाटर। कंजर्व वाटर के लिए कैनाल भी लाई गई और हमने खेत खेत पॉन्ड भी देखा। ठीक है, वो हमने बनाया कि कैसे हम बचा सकते हैं पानी को। रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है, धीमे धीमे पानी यहाँ से वाटर टेबल इंक्रीज कर सकता है। थ्रू दिस टेक्निक्स such as rainwater harvesting, efficient irrigation and water retention resources. वाटर रिटेंशन को भी हम देख सकते हैं, वाटर रिटेंशन कहाँ है, आपके इस पॉन्ड में हो रहा है। अब क्लाइमेट आ गया, वाटर आ गया, तीसरा अब क्या हो सकता है, तीसरा होगा सॉइल। सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जैसे कि आप मान के चलिए, अगर राजस्थान की आप सैंड को हाथ में से पकड़ते हैं, आपने अपनी मुट्ठी बंद करी, रेत है वो निकल गई हाथों से, तो जो रेत हाथों से निकल गई उसमें से तो पानी भी निकल गया। सो दैट इज वाई सैंडी सॉइल डजंट होल्ड वाटर। और वहीं पे अगर आप ब्लैक सॉइल देखते हैं, जहाँ पे आपका इंडिया का मैच हुआ था ऑन द गुजरात स्टेडियम, वो वाटर को होल्ड करती है, वाटर को होल्ड भी करती है, वर्डी सोल कहा जाता है उसे, बट वो क्रैक भी हो जाती है, क्रैक हुई थी जिसकी वजह से हम वहाँ पे नहीं स्टार्टिंग के टाइम पे मैच में अच्छे से बैटिंग कर पाए थे। ओके। सॉइल कैरेक्टरिस्टिक, soil composition, structure, and the fertility plays crucial part in dryland farming. Soil in arid region often have low water retention capacity. उसका एग्जाम्पल मैंने आपको मुट्ठी में सॉइल पकड़ के बताया था। एंड मे मे बी प्रोन टू इरोजन। वाटर जब सॉइल आपके हाथ से निकल गई तो दैट मीन्स कि वो पानी को भी नहीं बचा पाएगी, एंड जब हवा चलेगी तो हवा के साथ उड़ के भी चली जाएगी। दैट इज द रीजन why we can see wind erosion over there. Okay.
Soil conservation practices, organic matter incorporation, and appropriate crop choices help addresses these challenge. जैसा देश वैसा भेष, जैसा वहाँ पे आपके लिए आपकी कहते सॉइल है, उसी हिसाब से आपको क्रॉप की चॉइस भी करनी होगी, ऑर्गेनिक मैटर्स की किसकी ज़रूरत होगी एंड कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस की भी ज़रूरत होगी. एंड नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड द टोपोलॉजी, दैट इज द शेप ऑफ लैंड. लैंड की शेप कैसे है? लाइक स्टीप स्लोप्स अगर हम कंसीडर करें पहाड़ के लिए, उसे हम नहीं मानते अच्छा. वहाँ पे वाटर रन ऑफ हो जाता है जल्दी, इरोजन बहुत आसानी से होता है. सो दैट इज वाई वी गो टुवर्ड्स, जो हमारे पास ऐसे स्लोप्स होते हैं हम उसे काट के टेरेस फार्मिंग करी जाती है. ऐसे ऐसे करके हमने स्पेसेस बना ली उसके अंदर काट काट के स्पेसेस को. तो अब आप देखेंगे लैडर की तरह इसको. ठीक है, ये आपका पूरा पूरा एक एरियाज है. अब अगर I'm सॉरी, 3D इमेज थोड़ी सी खराब बनी है. लेट मी जस्ट मेक इट अगेन. तो ये हमारे पास एक स्लोप था जो मैंने अभी हटा दिया है. नाउ यू कैन सी बेटर. एक स्लोप है, यहाँ पे अगर हम खेती करते हैं तो जब बारिश हुई सब बह के नीचे चला जाएगा. वहीं पे हमने जो हमारा स्लोप था इसको हमने डिवाइड कर लिया ऐसे, स्टेप्स लैडर, या आप कह सकते हैं टेरेस फार्मिंग. तो अब यहाँ पे भी हमने प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा सा पानी बचा लिया, काइंड ऑफ अ डैम रिजर्वोयर की तरह. अब पानी यहाँ पे आया, पानी यहाँ पे वेट करेगा, इस एरिया को जब पार करेगा तब वो नीचे की तरफ जाएगा. सो नाउ जो फ्लो यहाँ पे फ्री फ्लो था, यहाँ पे वो फ्लो उतना फ्री फ्लो नहीं. So now we are going to see topography. Topography of a land affects water runoff, erosion, and distribution of rainfall. Sloping terrain can contribute to soil erosion. Sloping terrain soil erosion में हेल्प करता है. जो टॉप लेयर है आपकी वो तो वॉश ऑफ हो गई नीचे. While the presence of depressions or valley may allow water retention. अब नीचे कहाँ गई? नीचे गई वैली के पास, वहाँ वैली में जाकर पानी भर गया. So terracing or contour flowing are the technique that are used to manage topographic challenge. ये कि आपका टेरेसिंग, कॉन्टूर मैंने आपको बताया था, एक ऐसे करके हिल है, आपने उसके ऊपर ऐसे डिविजन्स कर रखे हैं. तो यहाँ से जो पानी है धीमे धीमे नीचे जाएगा. ठीक है. एंड नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स क्रॉप सिलेक्शन. क्रॉप सिलेक्शन इज ऑल अबाउट ड्राईलैंड फार्मिंग में कि आप कैसे कैसे आप, क्योंकि हम इसे ड्राईलैंड उसमें देख रहे हैं, तो हम देखेंगे क्रॉप सिलेक्शन की ड्रॉट रेजिस्टेंस जो क्रॉप है जैसे मिलेट्स होते हैं, हम उन्हें ग्रो करेंगे. ठीक है. चूजिंग ड्रॉट रेजिस्टेंस एंड हीट टॉलरेंट क्रॉप वैरायटी is essential in dry farming. Crops such as millet, sorghum, legume, and certain oil seeds are better adapted to the arid conditions. Okay, या सो नेक्स्ट हम चलते हैं. क्रॉप अगर सिलेक्शन भी हमने कर लिया तो अब हम लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की तरफ जाएंगे. सॉरी, एक पॉइंट रह गया था. क्रॉप रोटेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन आल्सो कंट्रीब्यूट इन मैनेजिंग द क्रॉप रिस्क फेलियर. क्रॉप रोटेशन क्यों जरूरी है? नाइट्रोजन फिक्सिंग एंड डिफरेंट न्यूट्रिशन जो क्रॉप को मिलने चाहिए उसके लिए. तो इसलिए हम करते हैं डाइवर्सिफिकेशन, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हम उगाते हैं वहाँ पे. नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. मुल्चिंग के बारे में आपको बताया था, कंजर्वेशन टिलेज के बारे में आपको बताया था, ये वहाँ पे जरूरी होती है. मुल्चिंग एंड कंजर्वेशन टिलेज मैं आपको ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन करूंगा इन द नेक्स्ट टॉपिक, सो दैट आपके पास एक फिगर भी हो उस चीज़ को समझने के लिए. कंजर्वेशन टिलेज, कवर क्रॉपिंग, मल्चिंग are important land management practice. Conservation tillage, cover cropping, and mulching are the important land management practices in dryland farming. These techniques help to reduce water evaporation, prevention of soil erosion, improving soil structure, contributing better moisture retention. Okay.
टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन। अब मैं फिर उसी एग्जाम्पल पे जाऊंगा, ड्रिप इरिगेशन, डिफरेंट सेंसर्स को लगाना, सो दैट इज हाउ टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग प्रिसीजन फार्मिंग, sensor based irrigation, remote sensing can enhance resource management in the dry land. Monitoring soil moisture level, weather pattern, crop conditions allow more informed decision making. वही सेंसर जो हमने टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पहले बताया था, जो नॉर्मल फार्मिंग में होता है वही ड्राई लैंड फार्मिंग में भी होती है। हम उसको मैनेज करते हैं एंड यहाँ पे हम सॉइल को मॉनिटर कर रहे हैं, उसका वाटर लेवल कितना है, वेदर पैटर्न, कब बारिश होने वाली है, क्रॉप की कंडीशन। सो व्हाट वी हैव सीन अर्लियर, वही टेक्निक्स हम यहाँ भी यूज कर रहे हैं। नाउ देन वी गो टू द एट्थ वन, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इफ आई एम राइट, यस आई एम राइट अबाउट इट। सो इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में हम ले सकते हैं कि जो जैसे बारिश यहाँ पे कम होती है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। डैम्स हम बनाएंगे, फार्म पॉन्ड हम बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसी को देखते हैं हम, एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स, चेक डैम्स, स्टोरेज, वाटर स्टोरेज फैसिलिटी। वाटर स्टोरेज फैसिलिटी को अगर हम हिंदी में देखें तो खेत तालाब कहे जाते हैं। चेक डैम्स को अगर हम देखें तो मेड़ बनाई जाती हैं आपके खेतों के अराउंड अलोंग, जहाँ से पानी बाहर नहीं निकले, ठीक है। is crucial for capturing and storing water during periods of rainfall. Efficient irrigation system such as drip irrigation, यहाँ फिर से आ गया drip irrigation, helps to optimize water use. आप ये मत सोचिएगा मुझे सिर्फ ड्रिप इरिगेशन ही आता है, दैट इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ एंड यू कैन सी इट बेटर। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स कम्युनिटी एंगेजमेंट। फार्मर जो एक साथ वर्क करते हैं, एक पूरा होल वाटरशेड को मैनेज करते हैं, लाइक द लैंड दैट ड्रेन्स इनटू वन स्ट्रीम, इसको हम कह सकते हैं। एक साथ मिलके पूरी चीज़ों का मैनेजमेंट करना, लाइक द होल वाटरशेड जो आपने बना रखा है, सब लोग उसी में से यूज़ कर रहे हैं, लाइक वे शेयरिंग। उसमें आपकी नॉलेज हुआ, आपका रिसोर्सेज हुआ, वाटर हुआ, आप सब लोग एक साथ मिल बैठ के काम कर रहे हैं एंड उस चीज़ को उस कंडीशन से हेल्प आउट कर रहे हैं एक दूसरे को। कोलैबोरेटिंग and community involvement are important factors such as in successful dry farming. Sharing knowledge, किसी ने कुछ डिस्कवर करा होगा माइट बी, द रिसोर्सेज, क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा सो करने का इलाका नहीं था, so you are sharing the resources. Collective implementing water management strategies contributing the overall resilience of farming community in the arid region. वाटर को आप कलेक्टिवली यूज कर रहे हैं कि भाई तुमको इतनी जरूरत है, मुझे इतनी जरूरत है, वी आर यूजिंग दीज वाटर्स। Now, the end point, the 10th one, is the government policy and supports. So this is the most crucial thing. Things like crop insurance, जो आप देखते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपने सुना होगा, ये सब्सिडाइज करती है ड्रिप इरिगेशन को। अगेन द ड्रिप इरिगेशन इज कमिंग अराउंड एंड रिसर्च फ्रॉम द आईकार, जो हेल्प करती हैं आपके फार्मर्स को, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड सपोर्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी सब्सिडाइज and support program for the dry land agriculture plays a significant role in promoting sustainable practices. Incentive for the adopting of water saving technologies, crop insurance, and research and development initiative contribute to success of dryland farming. So, given challenges uh, posed by the water scarcity and arid condition, a holistic approach that addresses our interconnected factor is crucial for success of dryland farming. So ये वही है कि जो भी आपका challenges हैं, जो भी आप overcome करते हुए आ रहे हैं, ये 10 factors से जो आपके affect करते हैं, कैसे आप इन सब चीज़ों को देखते हुए अपने dryland farming में एक better growth कर सकते हैं with the collective
effort. Now we are going to see arid and semi-arid regions of India. मैं आपको वैसे बता चुका था, but now things will be more clear about it. Climate, this is the area and this is the region. Arid topics, that is 3.7 hectares. Rajasthan comes under it, Gujarat, Punjab, Haryana, parts of Karnataka and Andhra Pradesh are being covered over here. Okay, and now we are going towards the arid temperature. This was आपका arid tropics, and now we are going towards arid temperature, that is 7 Jammu and Kashmir. Semi-arid tropics SAT, that is 995.7. ये टेबल से ही आपको याद करनी होगी. महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश. यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हाउ राजस्थान इज ओवर सेमी एरिड टॉपिक्स टू एंड राजस्थान इज ओवर एरिड टॉपिक्स टू, बिकॉज राजस्थान एक बहुत बड़ी स्टेट है. some part comes under arid, some part comes under semi arid topics. Now you see arid temperature Jammu and Kashmir, semi arid temperature 1.4, that is Jammu and Kashmir. States बड़ी हैं इंडिया में, डिवीजन अच्छे से है. And now moisture and thermal regime of the different climates, moisture regime, thermal regime, constraint of cropping and potential crops. कौन सी जगह पे हम किसी को ग्रो करते हैं. तो एक जल्दी से हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, एंड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. आई विल ट्राई नॉट टू पुट अ मार्क ऑन दिस सो दैट यू कैन सी दिस क्लियरली. ओके, क्लाइमेट, एरिड टॉपिक्स, उसका मॉइस्चर रिजीम है ड्राई, दैट्स अ ड्राइनेस इन दैट. थर्मल रिजीम is 18 degree Celsius. Constraints for cropping, moisture. Constraint for cropping मतलब क्या चीज़ की कमी है, that is moisture. क्या उग सकता है, मिलेट उगेगा, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट, सोगम, गुआर, बीन्स एंड चिकपीस. Drought resistance legume and desert melon. Now we are going towards the arid temperature, that is dry, below 18 degree Celsius. Moisture and temperature दोनों में कमी है. अब यहाँ पे विंटर्स की क्रॉप आएंगी. wheat, barley, cold tolerant vegetables, turnip, carrot. Some drought resistant fruits is apple and grape. एप्पल यहाँ पे आया, अब आपने देखा एप्पल ड्रॉट रेजिस्टेंट फ्रूट है. दैट इज वाई एप्पल कम्स फ्रॉम आपके वेस्टर्न हिमालयन रीजन, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, द फर्स्ट चैप्टर, वेरी फर्स्ट वन. ओके, सेमी एरिड टॉपिक्स सैट, दैट इज वेट ड्राई अबव 18 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है. सीरियल्स यहाँ पे आपको मिलेंगे मेज, सोगम, पर्ल मिलेट. पल्सेस लाइक चिकपी, पिजन पी, oil seeds is groundnut, mustard, cotton vegetables, tomato and onion. Okay, we are going quick with this. Okay, this is a table कि आपको पढ़नी भी है. Semi arid temperature, wet dry, below 18 degree Celsius, temperature के in the constraint है. Spring cereals आपकी wheat, barley. Winter vegetables आपकी broccoli and cauliflower. Cold tolerant fruit आपकी berries and stone fruit. This is what dry farming region in India हमारे different है. एंड नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा टिलेज, जो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू. सो थैंक यू. आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो. आपके कमेंट्स नीचे हमेशा के लिए खुले हैं. जो भी इम्प्रूवमेंट, जो भी आपको चेंजेस, जो चीज़ आप नहीं समझ पाते हैं, आप वहाँ लिख सकते हैं. होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में उस चीज़ को हम रेक्टिफाई करेंगे, आपके लिए और बेटर करेंगे. विल ट्राई टू मेक इट मोर थिंग्स मोर ईजी. टिल देन, please stay tuned and thank you. And please subscribe. Your subscription helps a lot for us in growing. Thank you.